because you will get the recording. इसका पूरा recording आपको मिल जाएगा. चलिए सविता जी, let's begin. Let me unmute. आप unmute कर लें अपने आप को. Unmute हुआ नहीं अभी. So now? Yeah. हाँ जी, अपना नाम बताइए. अपना नाम बताइए. अनम्यूट कर लें अपने आप को. आपने अनम्यूट किया नहीं अभी. आप अनम्यूट का ऑप्शन आ गया. हाँ, अभी हुए नहीं आप. चलिए, हाँ अब हो गए. चलिए बताइए सविता जी. ओके, लेट्स. अपना नाम बताइए. My name is Sabita. I'm from Bangalore. Okay. And what is your expectation? No, I've done my first level, so I'm interested in doing this again. Awesome. Most welcome. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Nothing. I'm interested to do this. Fantastic. Very nice. Yeah, I'm a Reiki healer. Oh, wow. Yeah, I'm a master also in Reiki healer. Very nice. Yeah. Thank you so much for coming. And I'm sure that it is going to be awesome Thank you, experience for you. Thanks for coming, Savita ji. Thank you, sir. Thank you. Yes, welcome. Give me a moment and just give me. Okay, now let's go to the next one. अब कौन शेयर करेगा? अपना हाथ रेज करें, अनम्यूट करें. Yes, श्याम जी, Mr. Shyam. Okay, okay, yeah. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Welcome. How are you, sir? I'm doing great. Thank you so much. How are you? Yes, sir, fine. Wonderful. Yeah, please introduce yourself. Yeah, my name is Shambhulinga. I am from Bangalore. Already I completed with sir, already completed first batch. Again, I'm attending the session because the sir speaking skills and whatever sir will explain, that I want to revise, because number of times we'll revise, definitely we'll learn something every day. So I want to again rejoin. So sir given the permission to join. So thank you very much, sir, for giving me opportunity again to recall myself. Thank you. Most welcome, absolutely. And it's our privilege, and you being the VIP member, so welcome you for bottom of heart. And I'm sure repeat is everything. Repetition is consistency is the key. So आप और सीखते हैं जब आप बार बार कोई चीज को करते हैं. You become the master. So once again, most welcome. Yes, sir, thank you. Thank you. Okay, और कौन इंट्रोड्यूस करेगा? राजेश जी, आप कर लें इंट्रोड्यूस. नमस्कार. अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इससे? सबको नमस्कार, मेरा नाम है राजेश. आवाज नहीं आ रही है आपकी. आवाज तेज, थोड़ा तेज बोले. I want you everybody to listen to you. मेरा नाम है राजेश बलूनी. हाँ. और मैं पिछला सेशन जो हमारा था इसका कलर थेरेपी का, मैं और ज्यादा क्या इसमें और डीपली क्या. आवाज नहीं आ रही राजेश जी आपकी, थोड़ा तेज बोलिए. We can't hear you. पिछले सेशन बहुत अच्छा था कलर थेरेपी का. मैं अब इससे और ज्यादा और क्या एडवांस क्या चीज है और क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में, ये उम्मीद है मेरी इसमें. Most welcome. Thank you so much for coming once again. धन्यवाद. Okay, now सरगम जी, you can unmute कर लें अपने आप को. Unmute करें अपने आप को सरगम जी. हो गया. Hello, सरगम जी, welcome. Yes, tell me. Tell us. मेरा संध्या श्रीवास्तव. क्या संध्या? सॉरी, आपने यहाँ पे सरगम लिखा हुआ. मैं वही तो कह रहा हूँ उनका. हाँ, वो मेरी बेटी का है. कोई बात नहीं. यह संध्या जी से आपसे तो कई बार बात हुई है मेरी. जी. इंट्रोड्यूस करें सबके साथ अपने आप को. कहाँ से हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी? मेरा नाम संध्या श्रीवास्तव है और मैं पटना बिहार से हूँ. हाँ जी. मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, नेचुरोपैथी में. इसलिए सीखना चाहती हूँ और जितना हो सके सबका हेल्प कर सकूँ. Wonderful, very nice. I think you've got very wonderful, noble thoughts, and I'm sure कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली. So most welcome once again. Thanks for coming, and you will learn lot of things. Thank you. Okay, now और कौन इंट्रोड्यूस करेगा? हाँ जी, इंट्रोड्यूस कर दे. भट्ट जी, जगदीश भट्ट जी इंट्रोड्यूस करें अपने आप को. सरिता जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं. आपका नाम अनम्यूट कर ले.
राकेश जी, मेरा नाम सरिता पाटिल। हाँ जी, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। डायबिटीज के बारे में। हाँ जी, हेलो। हाँ जी राकेश जी, मैं डायबिटीज के बारे में थेरेपी कैसे उसमें ज्यादा जानकारी लेना चाहती हूँ। ये कौन बोल रहा है? एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आ रहा। Who is introduced? आपने वीडियो ऑन कर लिया हमने। चलिए अब दोबारा आते हैं हम। यहाँ पे और भी हैं, आप भी इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। ये आपका नाम नहीं आ रहा। सुलोचना जी। हाँ जी राकेश जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर ले। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे बाद में भी। और वी ऑल्सो हैव जगदीश भट्ट जी, रेवती जी, मिसेस बटालिया। So I would request you to also for second just introduce yourself. Then you can put off your videos, no problem. So if it is possible, please come. It's a digital handshake, so I want you to thoda aage you can do the introduction. Note for Revati ji, we have introduce कर ले, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो। ओके, आई थिंक देयर इज, चलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम अब इंट्रोडक्शन चलता रहेगा हमारा बीच में भी। तो कुछ मेरे को लग रहा है नेटवर्क इशू है उधर की तरफ से, सो दैट्स द रीजन सम पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक, सो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो नो प्रॉब्लम, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आई अगेन वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है कलर थेरेपी की ट्रेनिंग में। और 3 से 6 ट्रेनिंग होने वाली है, और आप अपने पेन एंड पेपर रेडी रख रहे हैं। एंड यू ऑल्सो, हम क्या करने वाले हैं अभी, आई विल टीच यू समथिंग। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर राउंड हम करेंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप साथ में लिखते भी रहिएगा। जब जब मौका मिलेगा तब तक हम इस क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी शेयर विद यू द पीपीटी। सबसे पहले कलर थेरेपी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो वेलकम टू कलर थेरेपी। कलर थेरेपी क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके, so what is color therapy? Color therapy क्या है? Color therapy is an alternative science therapy, uses colors and their frequency to heal physical emotional problems. Color therapy यानी कलर थेरेपी एक रंग चिकित्सा, एक वैकल्पिक चिकित्सा जो शारीरिक भावनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए रंग, यानी कि कलर थेरेपी वो ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा आप अपने इमोशनल, आप अपने फिजिकल, आप अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। कलर थेरेपी इज ए एंशिएंट हीलिंग मेथड। कलर थेरेपी जब शुरू होती है आपके एंशिएंट इजिप्ट से, कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट से कलर थेरेपी स्टार्ट हुई थी, यानी कि इजिप्ट में कलर के द्वारा हीलिंग किया करते थे। वो रंगों के द्वारा ऊर्जा को, लाइट को छोड़ते थे, उससे लोगों की हीलिंग करते थे, यानी कि हजारों साल पुरानी कलर थेरेपी है। और जब हम बात करते हैं कलर थेरेपी की, तो हम देखते हैं कि कलर थेरेपी कैसे काम करती है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि आपने जरूर देखा होगा कि जब हम किसी कलर को देखते हैं तो उस कलर को देखने से हमारा माइंड चेंज हो जाता है। कलर को देखने से कई बार हमें अच्छा फील होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी गार्डन में आप जाते हैं, किसी फूलों के गार्डन में जाते हैं, फ्लावर को देखते हैं तो यू फील गुड। और उसी कई खराब कलर को देखते हैं, ब्लैक को देखते हैं, रेड को देखते हैं, तो आप मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। कई बार ब्लैक को देख के आपका मूड भी खराब हो जाता है। तो कलर को से विद द हेल्प ऑफ कलर यू कैन चेंज योर मूड। साइकोलॉजिकली आप अपना मूड चेंज कर देते हैं। साथ में कलर आपकी हेल्प करते हैं फिजिकल लेवल पे भी। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि हम जब किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं, व्हेन वी गो टू वास्तु कंसल्टेंट, सो ही टीचेस यू कि आप अपने घर की एनर्जी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कलर के क्रिस्टल अपने घर में रखें। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो कहता है आप क्रिस्टल को रखेंगे तो आपकी एनर्जी ठीक होगी। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपको अलग अलग कलर की रिंग पहनने के लिए कहते हैं, गोमेद, पुखराज, टर्कोइज, अलग अलग वो बताता है आपको, मैरीगोल्ड या आप मूंगा, ये सारी चीज बताते हैं कि आप इसको पहनेंगे तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी। और जब आप जाते हैं किसी रेकी हीलर के पास तो वो आपको बताता है कि कैसे आप अपने 7 चक्रों को बैलेंस करेंगे, कैसे आप अलग अलग कलर के स्टोन के साथ, क्रिस्टल के साथ अपने कलर को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं।
यानी कि कलर का जो हमारे बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर यूज होता है। और साथ में हम देखते हैं कि नेचुरोपैथी के अंदर कलर थेरेपी को क्रोमोथेरेपी कहा जाता है। कलर थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे? पानी को हम सूरज की रोशनी में 40 डेज रख के उसको थेरेपेटिक वाटर बनाते हैं, हीलिंग वाटर बनाते हैं। वैसे ऑयल को अलग अलग कलर में हम रैप करके सीसी के अंदर उसको अलग अलग तरह से हीलिंग के लिए, यानी कलर न केवल हमारा हेल्प करता है हमारे फिजिकल एलिमेंट में, साथ में फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारे साइकोलॉजिकल एलिमेंट में भी कलर हमें हील करता है। कलर हीलिंग के साथ साथ हम देखते हैं कि कलर हीलिंग करने के साथ साथ कई प्रकार की एनर्जी को बैलेंस करता है। अब ये कलर काम कैसे करता है वो आप समझ लेंगे। आप लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं सो दैट आई कैन सी यूर लिसनिंग। तो नो प्रॉब्लम, आप वीडियो को ऑन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो देखिए होता क्या है कि कलर जब कैसे काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार की जब बीमारी होती है, जब हम कोई बीमारी होती है तो जैसे बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, डायबिटीज हो गई, कोई भी दिक्कत जब आती है तो उसका कारण होता है कुछ। लेकिन जब हम एलोपैथी के पास जाते हैं तो वो दवाई देते हैं हमें। दवाई के ज्यादा हमारा जो बॉडी का जो उसको दवाई जो भी कारण है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। ऐसी अलग अलग थेरेपी के अंदर जैसे होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी है, अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। जो कलर थेरेपी है वो आपकी बॉडी को बैलेंस करती है। यानी कि अगर कहीं आपका बॉडी के अंदर पेन है तो पेन इसलिए है क्योंकि वहां पे एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है, या तो एनर्जी बढ़ गई है या एनर्जी घट गई है। तो पेन को कैसे हम डील करेंगे कलर थेरेपी के साथ? अगर कहीं पेन बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ गई है तो उसको हम कम कर देंगे। और वही पेन अगर कोई बॉडी का पार्ट हमारा सही काम नहीं कर रहा तो हम उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। वो कैसे हम बढ़ाएंगे ये सारी चीजें अभी आप सीखेंगे। तो ये हमने देखा कलर थेरेपी का कि ये एंशिएंट इजिप्ट में कलर थेरेपी के हमने देखा कि यूज होती थी और आज पूरे विश्व में यूज हो रही है। अब इस चार्ट पे आए थे, इससे पहले आप सारी चीजें आप वीडियो ऑन कर लें अपना सारा। सो क्या आप सब लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है जो भी मैंने बताया? आर यू एबल टू गिव मी थम्स अप? थम्स अप दें। गुड, वंडरफुल। सो यू हैव टू गिव थम्स अप, पार्टिसिपेट करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो। चलिए, अब मैं बात करता हूं। क्या होता है कि कहा जाता है कि जब उस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, कैसे शुरू हुआ पूरा ब्रह्मांड? जब पूरा ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो सबसे पहले डार्कनेस था। डार्कनेस यानी कि अंधेरा। अब इस चार्ट को आप देखिए, मैंने इसमें पीडीएफ आपको भेज दिया है। जब कुछ नहीं था इस दुनिया में सबसे पहले डार्कनेस था। डार्कनेस का मतलब तम का मतलब अंधेरा था। अंधेरे के बाद अंतरिक्ष यानी कि स्पेस बना। स्पेस के बाद बनी विंड मतलब होता है वायु, जो चलती हुई विंड होती है उसको वायु कहते हैं। वायु के बाद बनी अग्नि, फायर के बाद बना जल यानी कि वाटर के बाद बना अर्थ यानी कि पृथ्वी के बाद बना टाइम, समय के बाद बना डायरेक्शन यानी कि दिशा के अंदर बनी है माइंड, मन, और उसके बाद सोल। तो ये हमारी 10 एनर्जी है। इसको हम शुरू करते हैं डार्कनेस से, अंधेरा से स्पेस से विंड से फायर से जल के बाद पृथ्वी से वायु। अब ये सारी चीज इससे आपको क्लियर हो जाएगी। तो होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम योग में कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी उसमें भी 5 तत्व है। दैट मीन्स द होल बॉडी इज मेड अप विद द 5 एलिमेंट: फायर, एयर, अर्थ, स्पेस एंड वाटर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और पूरे ब्रह्मांड में जो है वो भी 5 तत्वों का बना हुआ है। लेकिन जो हम कलर थेरेपी यहाँ पे सीख रहे हैं, दिस कलर थेरेपी इज बेस्ड ऑन दी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का इसका बेस है। अलग अलग तरीके से जो हम कलर थेरेपी को हम सुजोग में भी यूज करते हैं, जहाँ पे केवल डॉट लगाए जाते हैं एक्यूप्रेशर के अंदर। लेकिन ये जो कलर थेरेपी हम सीख रहे हैं, द बेस ऑफ दिस कलर थेरेपी इज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। सो आई होप यू ऑल ऑल्सो नेटिव, मेक श्योर यू नोट डाउन, जो भी आपको समझ में आप नोट डाउन, यानी कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है? आयुर्वेदा इज द एंशिएंट हीलिंग मेथड ऑफ एंशिएंट इंडिया। आयुर यानी कि द नॉलेज ऑफ लाइफ की जो नॉलेज है वो आयुर्वेदा देता है। सो दैट इज दी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बेस पे ये कलर थेरेपी है।
यानी कि यहाँ पे जो बात करी है हमने 5 तत्वों की बात नहीं करी. वी डिड नॉट टॉक अबाउट 5 एलिमेंट, वी टॉक अबाउट 10 एलिमेंट्स. और अभी हमने 10 एलिमेंट्स को पढ़ा है कि जब इस धरती पे कुछ नहीं था तो उस समय केवल 5-10 तत्वों के द्वारा क्रिएशन, ये क्रिएशन साइकिल इसको हम कहते हैं, जो हमने देखे. दोबारा से मैं आपको इसको बता देता हूँ. क्रिएशन साइकिल, पहले डार्कनेस, फिर स्पेस, फिर विंड, फायर, वाटर, वाटर से बना पृथ्वी, पृथ्वी से टाइम, डायरेक्शन, माइंड एंड सोल. ठीक है. सो क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? गिव मी थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग. क्रिएशन साइकिल समझ में आ गया आपको? गिव मी थम्स अप. वेरी गुड. अच्छा, प्रियांशी जी भी जुड़ चुकी हैं. तो आप ऐसे करना है, यहाँ पे आपके वहां पर रिएक्शन का एक वो है, तो वहां पे यू कैन जस्ट व्हेनेवर आस्क अ क्वेश्चन मेक श्योर यू पार्टिसिपेट. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट because I want to make you healer, so I don't want you to go with the little knowledge. You need to become healer so that you can heal everybody. Okay, ठीक है. चलिए, सो क्रिएशन साइकिल हमने देखी कि जैसे इस ब्रह्मांड की शक्ति है, कैसे ये पूरा ब्रह्मांड बना. अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे कि कैसे हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं कलर थेरेपी के अंदर. तो अब सबसे पहले ये चार्ट पे आ जाए. देखिए, अभी हमने बात करी थी 10 साइकिल की. अब हम यह बात कर रहे हैं. देखिए, चार्ट आप खोल लें. चार्ट के अंदर आपने देखा यहाँ लिखी हुई है एनर्जीज. एनर्जी के नीचे लिखा हुआ डार्कनेस, स्पेस, विंड, फायर, वाटर, अर्थ, टाइम, डायरेक्शन, माइंड, सोल. दूसरी चीज इसके यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बना ले. पहले एनर्जी लिख ले. वैसे आपको ये सारी पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ, साथ में प्रोटोकॉल भी भेजूंगा, लेकिन फिर भी when you write something you it get registered in your mind. जब भी आप लिखते हैं कोई चीज ना, आपको आप अच्छी तरीके से वो याद होती है. इसके यहाँ पे लिख ले टोनिफिकेशन का कलर. टोनिफिकेशन का मतलब होता है ऊर्जा को बढ़ाना. इंक्रीज द एनर्जी मीन टोनिफिकेशन. दूसरा लिखा हुआ है सिडेशन. सिडेशन का मतलब होता है एनर्जी को कम करना, यानी कि रिड्यूस द एनर्जी, सिडेशन. टोनिफिकेशन बढ़ाना, टोन करना, और सिडेशन मतलब घटाना. अब देखिए, जैसे हमने 10 साइकिल पढ़ी है, तो सबसे पहले हमने देखा डार्कनेस. डार्कनेस का मतलब होता है कम, यानी कि अंधेरा. डार्कनेस को बढ़ाने का जो कलर है वो है ब्लैक. अब आप इसके आगे लिख लीजिए, डार्कनेस को टोन करना यानी कि बढ़ाना, तो ब्लैक कलर से हम यूज करेंगे. अभी हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं, अपने हाथों की कहाँ उंगलियों पे यूज करेंगे, कौन सी बीमारी कैसे ठीक करेंगे, वो आप अभी सीखेंगे. पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले आप लिख लें ब्लैक, यानी कि बढ़ाना, डार्कनेस को बढ़ाना, ब्लैक. ब्लैक से डार्कनेस बढ़ेगा और वायलेट से कम होगा, वायलेट से कम होगा. दिस इज द वायलेट. स्पेस को बढ़ाने के लिए वायलेट कलर, यानी कि स्पेस को हम जब बढ़ाते हैं, आकाश को बढ़ाएंगे, इसको हम वायलेट कलर से बढ़ाएंगे. और इंडिगो कलर से उसको, यानी कि गहरे नीले कलर से उसको सिडेट करेंगे, यानी कम करेंगे. विंड, यानी कि विंड एक होती है एयर. एयर का मतलब होता है चल, जो चलती हुई विंड होती है, चलती हुई जो हवा होती है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड बढ़ेगी इंडिगो से. इंडिगो ये वाला कलर है, और घटेगी ब्लू से. ब्लू ये वाला कलर है. फायर, फायर मतलब ब्लू कलर. ब्लू से फायर, यानी कि अग्नि फायर से बढ़ेगी, और ब्लू से, और ग्रीन से, यानी कि जल से कम होगी. वाटर, वाटर यानी कि ग्रीन, ग्रीन से बढ़ेगी और येलो से कम होगी. अर्थ एलिमेंट, अर्थ यानी कि पृथ्वी, येलो से बढ़ेगी. ऑरेंज यानी कि कम होगी. टाइम, समय, ऑरेंज बढ़ेगा. अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या क्या चीज है. रेड से घटेगा. डायरेक्शन, रेड से बढ़ेगी, पिंक से कम होगी. माइंड, पिंक से बढ़ेगा, माइंड की, और ग्रे से कम होगा. सोल, ग्रे से बढ़ेगा, ब्लैक से कम होगा. चलिए, अब जो है आप सभी इसमें नोट कर लें अपनी बुक में, जो भी अभी पढ़ाया मैंने. अभी हमने 2 चीज कवर करी है. एक तो कलर थेरेपी क्या चीज है, और दूसरा हमने कवर करी क्रिएशन साइकिल क्या है. 10 तत्व उसमें होते हैं. फिर हमने कवर किया कि कैसे हम, कौन सी एनर्जी से कौन सा कलर बढ़ेगा, कौन से घटेगा. ये 3-4 चीजें आपको क्लियर हैं? गिव मी थम्स अप इफ यू. अभी आपको, वेरी नाइस. सविता जी, श्याम जी, यस, ममता जी. चलिए, क्लियर है? जब आपको, अभी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, यू कैन आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चन. आपको सारी चीज शाम तक क्लियर होने वाली है. ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है वो भी लिख लीजिएगा.
अब हम मेन चार्ट पे जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझेगा, बहुत ही ज्यादा मेन चार्ट है। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि कलर से बढ़ेगा घटेगा, ये चीज क्या है, कैसे हम कलर से हील करेंगे, और कलर से कैसे बॉडी की एनर्जी बढ़ती है, कैसे कम होती है। तो अब उस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट दिस इज। सो लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो देखिए डार्कनेस, अभी हमने बात करी थी डार्कनेस। डार्कनेस को बढ़ाने का जो कलर है, ये अब लिखते भी लग जाइए साथ साथ में, डार्कनेस को बढ़ाने का जो कलर है वो ब्लैक है। अब ब्लैक के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए चार्ट के अंदर, एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की विशेषताएं, जो तत्व हैं 10, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यानी कि काला कलर करता क्या है, ब्लैक कलर करता क्या है, स्पेस कलर करता क्या है। तो डार्कनेस यानी कि नथिंगनेस, यानी कि जो भी डार्कनेस है नथिंगनेस, यानी कि अंधेरा, डार्कनेस मतलब नथिंगनेस, जीरो। इट हेल्प्स टू ट्रीट इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होगा वो ब्लैक कलर से इन्फेक्शन जाएगा। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्टमक इन्फेक्शन हो, चाहे वो गले पे इन्फेक्शन हो, चाहे वो कहीं भी इन्फेक्शन हो हमारी बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे ब्लैक कलर का। लिख लीजिए इसको, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी वी विल यूज ब्लैक कलर। प्लस एनी टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन, अगर बॉडी में हम प्यूरिफाई करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना है, डिटॉक्स करता है, उसके लिए भी हम यूज करेंगे ब्लैक कलर का। ओके, नाउ दूसरा स्पेस जो है, स्पेस यानी कि वायलेट कलर, ये वाला कलर है स्पेस जो कलर है आकाश, इसके क्या क्या गुण होते हैं, व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कलर। स्पेस इज सॉफ्ट, स्पेस सॉफ्ट होता है, जैसे हमारे आसपास स्पेस है, सॉफ्ट है, वी कांट सी दैट, दिस नॉट सॉलिड। स्पेस इज लाइट, आकाश जो है लाइट है, माइक्रो बहुत छोटा होता है, स्मूथ, वेरी स्मूथ, इट प्रोवाइड्स कवरिंग, ये कवरिंग देता है। यानी कि देखिए हमारी जो पूरे धरती को, पूरी जो धरती है जो उसको कवर कौन करता है, आसमान कवर करता है, स्पेस, तो हमारी पूरे कवरिंग देता है स्पेस। इट हैज नॉन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, ये रेजिस्ट नहीं करता। इट हेल्प्स टू एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ये हमारी ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करता है। यानी कि स्पेस जो एलिमेंट है, जो वायलेट कलर है, जो बैंगनी कलर है, वो काम करता है किसी भी प्रकार की एलर्जी के लिए। नाक में एलर्जी हो गई, स्किन में एलर्जी हो गई, हम वायलेट कलर का यूज करेंगे। कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया आपको, या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है हमें, तो टाइप 1 डायबिटीज हो गई, ऐसी सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है जहां पे हमारे सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, वो भी हम ट्रीट करेंगे स्पेस कलर से, यानी कि वायलेट कलर से। लिख लीजिए इसको, वायलेट कलर फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज, वायलेट कलर फॉर एनी स्किन डिजीज, वायलेट कलर एनी काइंड ऑफ एलर्जी, नाक में एलर्जी हो रही है तो वायलेट कलर का यूज करेंगे। अभी आपको धीरे धीरे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। लेट्स गो वंस अगेन टू द चार्ट। ओके, विंड मतलब जैसे कि मैंने बात करी, ये विंड का कलर है, विंड यानी कि चलती हुई हवा को विंड करते हैं। विंड इज लाइट, जो विंड होती है वो लाइट होती है। विंड इज कोल्ड, विंड ठंडी होती है, हवा चलती है, ठंडा ठंडा लगता है, विंड इज कोल्ड। विंड इज ड्राई, विंड ड्राई करती है, सुखा देती है किसी चीज को। विंड इज रफ, विंड माइक्रो होती है, बहुत छोटी हुई है, उसको हम देख नहीं सकते। इट्स ऑलवेज नोन फॉर द मूवमेंट, और विंड हमेशा मूवमेंट देती है। फायर हॉट, फायर जो है बहुत हॉट होता है, गर्म होती है, अग्नि जो गर्म होती है। फायर इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है फायर, एक्टिव होती है। फायर इज वेरी लाइट, फायर इज माइक्रो, फायर इज ड्राई, फायर ड्राई कर देती है। फायर कोई भी जख्म, अगर घर में बॉडी में कोई भी जख्म भर गया तो उसके लिए हम फायर उसको ड्राई करेगी। फायर मेल्ट कर देती है, यानी कि जो अग्नि है वो किसी चीज को गला देती है। आप देखो अग्नि में हम कोई चीज डालते हैं आग, फायर में उसको वो गला देती है, ये इसके गुण है। और फायर डिटॉक्सिफाई करती है, कोई बॉडी में कोई चीज होगी तो वो डिटॉक्सिफाई फायर करती है। अभी मैं इसको बता देता हूँ, फिर अभी विल गो टू क्वेश्चन आंसर। वाटर, पानी क्या करता है? वाटर इज लिक्विड, पानी लिक्विड होता है। पानी स्लिपरी होता है, पानी स्लिपरी होता है बहुत ज्यादा। वाटर इज कोल्ड, वाटर इज स्लो, वाटर स्लो होता है। वाटर इज सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है वाटर। एंड स्टिकी, बहुत स्टिकी होता है वाटर। अर्थ इज वेरी हैवी, पूरी जो अर्थ है दैट इज वेरी हैवी। हम अभी बैठे हुए चेयर पे, दिस इज ऑल्सो अर्थ, वेरी हैवी। अर्थ इज रफ, अर्थ रफ होती है। अर्थ इज वेरी हार्ड, अर्थ इज स्लो। अर्थ स्टेबल होती है, अर्थ को मूव नहीं कर सकता है। अब ये जो अर्थ है, ये मोबाइल भी अर्थ हो गया, तो इट्स वेरी स्टेबल।
एंड देन दैट अर्थ इज डेंस, अर्थ यानी कि पृथ्वी डेंस होती है, मैक्रो होती है, बड़ी होती है, एंड हैज पावर टू होल्ड, अर्थ की पावर टू होल्ड होती है। कोई भी चीज हम पावर टू होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे पेपर हिल रहा है और हम उसमें कोई भी चीज रख देंगे, पेपर वेट रख देंगे, अर्थ रख जाए तो हिलना बंद कर देगा। वो पावर टू होल्ड, किसी भी चीज को होल्ड करती है। टाइम, टाइम का क्या मतलब होता है यहाँ पे? टाइम का मतलब होता है नर्व इंपल्स देना। हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन का जो समय होता है, जैसे हमारा हार्ट बीट है, लंग्स है, किडनी है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, आईज है, सबका अपना टाइम है। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का अपना टाइम है। टाइम पे हम सोना चाहिए, टाइम पे हम उठना चाहिए। लेकिन जब वो टाइम में गड़बड़ी हो जाए, जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की किडनी फंक्शन ज्यादा कर रही है, कम कर रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, कम हो रही है, डाइजेशन गड़बड़ हो गया, तो जब भी टाइम का खराब हो गया तो हम टाइम से उसको ठीक करते हैं। टाइम के लिए हमने बताया ऑरेंज कलर है। डायरेक्शन, डायरेक्शन सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन देते कोई चीज। हेल्प्स टू क्विट बैड हैबिट्स, कोई भी किसी को बैड हैबिट्स होगी, कोई स्मोकिंग की हैबिट्स है, ड्रिंकिंग की हैबिट्स है, ड्रग की हैबिट्स है, कोई बैड कंपनी में आ गया, वहां पे हम डायरेक्शन का यूज करेंगे। माइंड, कंट्रोल ओवर सेल्फ, माइंड को हम कंट्रोल करेंगे, फोकस बढ़ाएंगे और हैप्पीनेस माइंड से हम कंट्रोल। माइंड के लिए ये पिंक कलर यूज करते हैं हम। अभी मैं सारे उसी पे आ रहा हूँ। सोल, सोल यानी कि इसमें ग्रे कलर यूज करते हैं, सोल आत्मा को बेटर करने के लिए। तो ये सारी चीजें देखिए हिंदी में है यहाँ पे, तम, आकाश, वायु। चलिए अब जो है मैंने आपको 3 चीजें बता दी है एंड धीरे धीरे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी अबाउट दैट। इनिशियली बहुत सारी चीज समझ में नहीं थी, अभी आई विल क्लियर एवरीथिंग। चलिए अभी मैंने आपको बताइए कि किस प्रकार से कौन कौन सी अलग अलग एनर्जी अलग अलग काम करती है। अब लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर नाउ। अभी शुरू करते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वांट यू टू आंसर टू मी। सो अभी मैंने चार्ट से पूछा था आपको, सबसे पहले हमने बात करी थी अलग अलग कलर की। अब ये बताइए मुझे, आई वांट यू टू रेज योर हैंड्स कि अगर किसी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो विच कलर वी विल यूज। किसी की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आंसर द क्वेश्चन। Yeah, give me thumbs up. Okay, so first I will take, okay, let's take Priyanshi. Priyanshi, आप वीडियो ऑन कर दें अपना and unmute yourself. Priyanshi वीडियो ऑन कर यहाँ लो। पे थोड़ा सा नेटवर्क एरर है, अगर मैं वीडियो ऑन करूंगी तो वॉइस ग्लिच आएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आप बताइए। वायलेट कलर इज यूज्ड। ओके, वायलेट कलर इज ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है, इन्फेक्शन के लिए आपने बोला, देखते हैं कितना सही है। लेट्स गो टू श्याम जी, इज अ जीनियस मैथ टीचर। सो लेट्स अनम्यूट कर लें अपने आप को। श्याम जी अनम्यूट करें अपने आप को। यस, व्हाट वी विल यूज, व्हिच वन? ब्लैक इन्फेक्शन। ऑसम, वेरी नाइस। सो ब्लैक इज द राइट आंसर। यानी कि कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के लिए हम काला कलर यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे वो अभी हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए अब दूसरी पर पूछते हैं, अगर किसी की स्किन प्रॉब्लम हो जाए, बॉडी में कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन सा कलर यूज करेंगे? आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। चलिए बोलिए, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाए कौन सा कलर यूज करेंगे? इसके लिए वायलेट होगा। यस, मैंने दैट्स पहला राइट वाला आंसर। आई रिमेम्बर आई स्लिप्ड इट एक्चुअली। कौन? प्रियांशी? यस सर। ऑसम, गुड, दैट्स राइट आंसर। कभी भी स्किन की प्रॉब्लम के लिए हम वायलेट यूज करेंगे। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्यों हम यूज करते हैं वायलेट। देखिए वायलेट, मैंने बताया कि वायलेट जो कलर है वो स्पेस का कलर है। स्पेस, पूरे इस पृथ्वी को स्पेस कवर करता है ना, आसमान कवर करता है। हमारी बॉडी को कवर क्या करता है? स्किन। स्किन इज द कवरिंग ऑफ द बॉडी। तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम होगी हम वायलेट कलर का यूज करेंगे। दैट्स राइट आंसर, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि किसी की बॉडी में अगर कोई चीज बह रही है, यानी कि वाटर एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया है, तो वाटर एलिमेंट को होल्ड कौन करेगा? विच विल होल्ड इट? पावर टू होल्ड किस एलिमेंट में? आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। पावर टू होल्ड, कौन सा एलिमेंट होल्ड करता है चीजों को? कोई चीज बह रही है, अर्थ एलिमेंट कम हो गया, कौन सा कलर यूज करेंगे? आप रेज योर हैंड करेंगे और उसके बाद ओके अनम्यूट करें। हाँ श्याम जी बताइए। सर ऑरेंज। ऑरेंज? नो नो नो, I said which color will use to hold the hold? Power to hold किसमें होती है? कोई चीज बह रही है,
सपोज किसी की नॉस्ट्रल से पानी बह रहा है, यानी कि अर्थ कम हो गया, उसको होल्ड कौन करेगा? व्हाइट कलर, व्हाइट। ओके, एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? ओके, White. Priyanshi, you gave the right answer and Yellow. very nice, but I want to ask some other people. चलिए और भी पार्टिसिपेट करें। मुझे राइट आंसर मिल चुका है वैसे चैट बॉक्स में। तो अगर कोई भी चीज बह रही हो, यानी कि वहां पे अर्थ एलिमेंट कम हो गया, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने के लिए कौन सा कलर यूज होता है? Yellow. दैट्स राइट आंसर। सो येलो इज द राइट आंसर। Yellow. अब देखिए कैसे इसको करना है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की आंखों से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, तो जल बढ़ गया वहां पे। अब जल को रोकता है, यहाँ पे पानी बह रहा है तो डैम बन जाता ना, पानी आ रहा नदी का पानी, तो डैम बना देते हैं, डैम बनाते हैं, डैम उसको रोक देता है पानी को। उसी प्रकार से डैम इज द अर्थ। तो जब पानी बह रहा है आंखों से, किसी के नोज से कोई का पानी बह रहा है, तो हम वहां पे अर्थ एलिमेंट यूज करेंगे, यानी कि येलो कलर लगाएंगे। वो कहाँ लगाएंगे अभी आप सीखेंगे उस चीज को। चलो वंडरफुल, वेरी नाइस। अब एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं एंड देन आई वांट यू टू आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है? तो अब ये बताइए कि किसी को बॉडी में, किसी की आंखें ड्राई हो गई है, ड्राइनेस बढ़ गई है, तो वहां पे यानी कि जल कम हो गया है, वाटर को बढ़ाने का कलर कौन सा है? विच कलर वी विल यूज टू इंक्रीज द वाटर? लेट्स गो टू द चार्ट। वाटर कलर हम कहां पे यूज करेंगे? चलिए, गिव मी मोमेंट, लेट मी गेट दैट कलर। कलर को लेके आ जाता हूं मैं एंड देन यू विल टेल मी। अब बताइए कौन सा कलर यूज होंगे हम? ग्रीन कलर को बढ़ाने के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? Green color, sir. ग्रीन इज द राइट आंसर, यस। आप ही बोला है आंसर। या सो ग्रीन कलर। ड्राई हो रही है, आईज आईज ड्राई हो रही है, तो उसको बढ़ाएंगे जल कलर, जल को बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर यूज करेंगे। green color. चलो एक और हम पूछते हैं, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आई वांट यू टू अनम्यूट एंड आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है? एंड देन विल मूव। आर यू ऑल एंजॉयिंग? पहले ये बता, आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस और नो? गिव मी थम्स अप। Yes. यस, एंजॉयिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो बहुत सारी चीजें ना ऊपर से जाएंगी, ठीक है? आई अंडरस्टैंड दिस, बट डोंट वरी, आई वांट टू मेक यू हीलर टुडे, सो डोंट वरी, यू विल लर्न एवरीथिंग। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप थेरेपिस्ट नहीं बन जाओगे। आपको डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं, डोंट वरी, ठीक है? चलो लेट्स गेट टू द पोस्ट। मैं आपसे एक और 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, और जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया वो अनम्यूट कर ले अभी, ठीक है? चलो अब ये चार्ट पे आ जाते हैं। ये बताइए मुझे कि किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड, या फिर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड मतलब हवा, वहां पे ठंड बढ़ गई है। अब ठंड को रोकने के कौन सा कलर यूज करेंगे? विच कलर वी बी यूज? ठंड को कौन कलर ठीक करता है? मतलब अगर ठंड लग रही हो किसी को, somebody is feeling cold, which color gives the heat? Give me, okay, just raise your hands and give me thumbs up. पार्टिसिपेट करें, जो भी अनम्यूट कर ले अपने आप को। ओके, जिन्होंने नहीं बोला वो यूज, वो ट्राई करो, गलत की चिंता मत करो। कौन सा कलर? Red. हाँ बताइए, सरिता जी आप बताइए। सिमरन जी? ऑरेंज नहीं है। और कोई ट्राई करे? सुलोचना जी आप कीजिए यूज। Red color. रेड गलत है। और ऐसा आप बता संजय जी? Blue. वंडरफुल, ब्लू इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। देखिए ब्लू मैंने बताया था ना, ब्लू क्या है कि गर्मी देता है। ब्लू आप देखो जब आग जलती है, आग में ब्लू लपटे आती है कई बार, येलो एंड ब्लू। सो ब्लू कलर जो है वो अग्नि देता है। एग्जाम्पल के तौर पे ठंड लग रही है किसी को, तो हम ब्लू कलर लगता है। ब्लू और क्या करता है कि बॉडी में कोई भी टॉक्सिन जमा है, साथ में ब्लू यूज होता है। किसी भी वेट लॉस के लिए ब्लू यूज करते हैं, क्योंकि ब्लू जला देता है। अग्नि क्या करती है? पृथ्वी को जला देती है। एग्जाम्पल के तौर पे नाक में किसी की हड्डी बढ़ गई है, हड्डी का मतलब होता है पृथ्वी बढ़ गई है। अब उसको हमने गलाना है, गलाएगा कौन? ब्लू। फायर गलाएगी ना, तो ब्लू कलर विल मेल्टेड। ओके, वेरी नाइस। चलिए ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। अब वो बोलेंगे जिन्होंने नहीं बोला, एंड देन मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए अब बात करते हैं हम। ओके, राइट।
चलिए अब ये बताइए मुझे, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ना मतलब पृथ्वी कम हो गई है। अभी बाल झड़ने के लिए उनको कौन सा कलर हम यूज करेंगे? येलो वी हैव टू इंक्रीज व्हाट? क्यों यूज करेंगे, कौन सा कलर? हाँ सविता जी, यू कैन ट्राई। येलो येलो Awesome. Yellow is the right answer. बहुत बढ़िया. Savita ji gave the right answer क्योंकि yellow is the color to hold. Very nice. Awesome everybody. So you all are doing great. Very nice. You are learning and I'm very happy for that. चलिए and now अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड कम करते हैं. अच्छा मेरी आवाज सही आ रही है आप सबको? ओके ठीक है. Yes, sir. अब एक चीज और करते हैं कि अब आई वांट यू टू आस्क मी क्वेश्चन. जिन जिनको क्वेश्चन पूछना है अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो अपना रेज करें हैंड एंड आस्क मी क्वेश्चन. चलो आई इसमें से जो चार्ट हमने भी पढ़ा है उसमें से आप मेरे को बताएं. रेज योर हैंड, पार्टिसिपेट करें. जो भी आपके क्वेश्चन है जस्ट आस्क मी क्वेश्चन. Yes, sir. हु इज आस्किंग? Priyanshi Rana. प्रियांशी. ओके गो ऑन, कम ऑन, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन. आपने कलर का तो बताया कि कौन से कलर्स है एंड आपने एलिमेंट्स बताए, लेकिन कौन सी फिंगर में करना है लाइक? अभी हम उसके अभी जाएंगे. अभी देखो वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. इसके बाद वही चैप्टर है, आपको मैं बताऊंगा लोकेशन कहाँ पे हमने यूज करना है. अभी ये तो समझ लिया कि कलर यूज करने हैं, लेकिन वो यूज करने का है कौन सी फिंगर में कौन सी बीमारी के लिए कौन सा कलर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. ओके सर. Any other questions so far regarding what we have learned so far? Okay. और किसका क्वेश्चन है? चलिए जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है raise your hand. Come on everyone. अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो इसका मतलब आप सब समझ चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी. So चलो go on, participate as much as possible. क्वेश्चन पूछे अपने. अब इफ यू डोंट आस्क देन आई विल आस्क क्वेश्चंस देन. हाँ बताइए सुलोचना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं चढ़ती हूँ जीने पे तो मेरा धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसके लिए क्या करें? हाँ चढ़ने में धड़कन तेज हो जाती है. बहुत ज्यादा यानी हो कि जाती अगर है। ये चढ़ने में धड़कन तेज हो रही है तो ये क्या है, हमारी जो हार्ट बीट तेज हो गई है. तो वो हमने देखना पड़ेगा. उसके लिए हम विंड बढ़ गया. विंड मतलब हमारी जो है वहां पे तेज से धड़कन हो रही है, तो देखना पड़ेगा. विंड बढ़ रही है तो उसको हाइपर हो जाता है हमारा हार्ट कई बार, तो उसको हाइपो करना, कम करना. उसमें हम अभी कभी सीखेंगे कलर कौन सा यूज करना है. लेकिन अभी जो हमने पढ़ाया उसके बेस पे कोई आपका क्वेश्चन है? अभी तक नहीं है. ठीक है. और किसी का क्वेश्चन? यानी कि सब समझ में आ रहा है सबको है. एवरीथिंग इज क्लियर. ओके वेरी नाइस. चलिए हाँ जी सिमरन जी आप बताइए. सरिता जी मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे डायबिटीज के लिए पूछना है कि कौन सा कलर कौन सी फिंगर में क्या बेनिफिट देता है डायबिटीज के लिए? बहुत बढ़िया. चलिए अभी डायबिटीज का जो क्वेश्चन है वो सारी बीमारी पे अभी भी हम आएंगे और कल हम सारी डिस्कस करेंगे पूरे दिन भर इसी चीज. लेकिन फिर भी मैं बताया था आपको डायबिटीज में क्या होता है. देखिए अभी हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं, लेकिन डायबिटीज यानी कि पैंक्रियाज डीएक्टिवेट हो गया, पैंक्रियाज का फंक्शनिंग कम हो गया. इंसुलिन वो कम बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहा, वो टाइप 1 टाइप 2. उसमें हमने अग्नि को बना देना. कहाँ पे लगाएंगे, वो किस फिंगर में आएंगे वो हम अभी सीखेंगे. ब्लू कलर लगाएंगे वहां पे. डायबिटीज के लिए ब्लू कलर यूज होगा क्योंकि ब्लू इज द कलर ऑफ, वो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वो हमारी फंक्शनिंग बढ़ाएगा पैंक्रियाज की. ठीक है. अभी काम यूज करने, अभी वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. चलिए ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं. आई थिंक अभी तक आप सब लोगों को समझ में आ गया. तो अब हम मेन चार्ट पे जाने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आ जाइए मेन चार्ट पे. चलिए पेन एंड पेपर ले लें अच्छी तरीके से एंड लेट्स गेट इनटू दी चार्ट. चलिए आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है सबको? कैन यू ऑल सी दिस चार्ट? ओके वेरी गुड. ठीक है चैट बॉक्स में वंडरफुल. यस देखिए चैट बॉक्स में लिखते जाए. अगर आपको दिखाते हैं चैट में यस लिख दे चैट बॉक्स में. ठीक है सबको दिखाई दे रहा है चार्ट? अभी मैंने देखा दिखाई दे रहा है चार्ट आपको? ओके गुड. चलिए
अब देखिए कैसे हमने कल अभी हमने जो चीजें सीखी हैं, अब हम बात करते हैं कि कौन सी बॉडी में कौन सी फिंगर पे हमारा कौन सा ऑर्गन आता है, ज्वाइंट आते हैं, जिसके बेस पे हमने कलर लगाने। तो देखिए सबसे पहले ये आपके सामने चार्ट खुल गया है। इस चार्ट को हम देखते हैं, दोनों हाथ बने हुए, ये राइट हैंड हमारा, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में हमारा आता है नेवल एरिया, यानी कि नाभि जो है वो हमारा राइट हैंड में आता है। यानी कि नाभि में कोई प्रोलैप्स हो जाएगा, नाभि किसी की नाभि हट जाती है, नेवल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है राइट हैंड के थंब पे हम उसमें इलाज करेंगे, राइट पे। लेफ्ट हैंड में एनएस आ जाता है हमारा, जो भी पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड की प्रॉब्लम है, वो सारी हम लेफ्ट हैंड के, यहाँ पे किसी को पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, वो यहाँ पे हम इलाज करेंगे लेफ्ट हैंड में एनएस का एरिया। ये हिंदी में भी है, तो ये सारा हिंदी में भी लिखा हुआ ना भी सारी चीजें, तो मैं एक बार इंग्लिश में बताता हूँ। अब राइट आई यानी कि सीधे आई जो है उसका इलाज होगा राइट हैंड के इस फिंगर पे। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर राइट आई का इलाज करेंगे, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे इलाज होगा लेफ्ट आई का। यानी कि अगर लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है या राइट आई में प्रॉब्लम है तो हम इलाज करेंगे राइट आई का, राइट यहाँ पे और लेफ्ट का यहाँ पे। बीच वाला ज्वाइंट, ये बीच वाला ज्वाइंट है, देखिए ये वाला नहीं है, बीच वाला ज्वाइंट है। अब रिप्रोडक्टिव होल्स, किसी को जैसे इचिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, या रिप्रोडक्टिव होल्स जो हमारा जेनाइटल में इचिंग हो जाती है, वहां पे रिप्रोडक्टिव होल्स पे हम कोई भी इचिंग होती है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, कलर को यहाँ यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड में आ जाता है माउथ, मुंह में जो प्रॉब्लम हो रही है, मुंह में छाले हो गए, माउथ अल्सर हो गया, वहां पे माउथ पे यहाँ पे इलाज करेंगे हम। देन राइट नॉस्ट्रिल का इलाज होगा राइट थंब पे, यानी कि जो रिंग फिंगर है हमारी, उसके जो बीच वाला ज्वाइंट है उस पे हम कलर लगा के इलाज करेंगे। हमारी नोज में अगर कोई प्रॉब्लम है राइट नोज पे, लेफ्ट नोज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इलाज करेंगे लेफ्ट रिंग फिंगर पे। राइट ईयर, यानी कि राइट कान में अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी, यानी कि सीधे कान में कोई दिक्कत आ रही है तो हम राइट फिंगर पे इलाज करेंगे, और लेफ्ट कान में कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट फिंगर के इलाज करें। तो एक बार आप सारा इसको लिख ले, वैसे तो पीडीएफ है फिर भी लिख ले, जो है एक बार ध्यान से लिखे। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। चार्ट को देखें, नाभि का इलाज इधर, एनस का इधर, राइट आई का इस फिंगर पे करेंगे, लेफ्ट आई के यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव होल्स, माउथ, राइट नोज, लेफ्ट नोज, राइट ईयर, ओके। चलिए ओके, वंडरफुल, लेट्स कम बैक। आप सबने लिख लिया? अच्छा ना, अब ये है, अब ये बताइए मुझे कि अगर किसी की बेस्ड ऑन जो भी आपको बढ़ाया गया उसके बेस पे, अगर किसी की आंखों में रेडनेस, रेड हो गया आंख, तो कौन सी उंगली पे इलाज करेंगे? आंखों में रेडनेस आ गई है, आंख लाल हो गई है किसी की, तो का इलाज करेंगे? ओके, श्याम जी अनम्यूट करें और बताइए, अगर आंखों में प्रॉब्लम होगी कौन सी उंगली पे इलाज करेंगे? राइट आई में कौन सी करेंगे और लेफ्ट में कौन सी? सर इंडेक्स फिंगर सर। इंडेक्स फिंगर। If left is there means left, right is there means right. वेरी नाइस। तो यानी कि अगर मेरी राइट आई में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे कलर लगाऊंगा, लेफ्ट में प्रॉब्लम यहाँ कलर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, राइट आंसर। ओके, नाउ अगर किसी के ये बताए कान में टिनाइटिस हो गया, यानी कान में कोई प्रॉब्लम होगी, खुजली हो गई, राइट कान में प्रॉब्लम आ गई, तो कहाँ पे इलाज करेंगे? ओके बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। चलिए एक बार, आप तो श्याम जी ऑलवेज प्रोएक्टिव, आप बताइए संजय जी, राइट ईयर में प्रॉब्लम तो कहाँ पे इलाज करेंगे? राइट रिंग फिंगर। राइट रिंग फिंगर, राइट ईयर, राइट ईयर, राइट पिंकी फिंगर। यस दिस वन, वेरी नाइस, दिस वन। Little तो हम ये आपका कान है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, वंडरफुल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, अब बताइए किसी को, अभी हमने चार्ट को पढ़ा, नोज में प्रॉब्लम हो गई है, नोज में छींकें आ रही हैं, तो नोज के छींकने के लिए कौन सी फिंगर में यूज करेंगे नोज के लिए? नोज के लिए? हाँ, कौन बोल रहा है? प्रियांशी। प्रियांशी, ओके प्रियांशी,
आप बताओ नोज में प्रॉब्लम है कि कहाँ पे इलाज करेंगे? नोज में एज अ होल, तो दोनों फिंगर्स में ही, लाइक ओके जो लेफ्ट फिंगर है उसकी इंडेक्स फिंगर, ओके दोनों इंडेक्स फिंगर. ओके, नहीं प्रियांशी, दिस इज नॉट राइट आंसर. सो सविता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? रिंग No, no, अनम्यूट योरसेल्फ सविता जी, आप बताइए, अनम्यूट Sir, करें और बताइए. हाँ जी, ring finger. ऑसम, वेरी नाइस. रिंग फिंगर इज द राइट आंसर. नोज में प्रॉब्लम है. अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको नोज में प्रॉब्लम, फिर मैं बताऊंगा एक एक बीमारी के बारे में, आईज में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, आपको सारी चीज क्लियर होंगी. यस, तो किसी को भी नोज में प्रॉब्लम हो गई, किसी को छींकें आ रही है, छींकें आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, पॉलिप हो गया, वी विल अप्लाई द कलर ऑन दिस फिंगर, बीच वाला ज्वाइंट, केवल बीच. दैट्स राइट आंसर. ओके, अब और दो क्वेश्चन कर लेते हैं. अभी बताए किसी के माउथ में बैड ऑर्डर यानी बदबू आ रही है, माउथ से बदबू आ रही है, बैड ऑर्डर, तो कौन सी उंगली में इलाज करेंगे? आप बताइए मुझे. वो मिला जिन्होंने नहीं बताया लेफ्ट हैंड. कि कौन बोल रहे हैं? प्रियांशी, लेफ्ट हैंड प्रियांशी. मिडिल फिंगर. अगर माउथ में लेफ्ट हैंड, विच फिंगर? मिडिल फिंगर. मिडिल फिंगर. वेरी नाइस, मिडिल फिंगर. माउथ की कोई प्रॉब्लम होगी तो मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड के हम यूज करेंगे. वेरी नाइस. चलो अब दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वी विल मूव अहेड. सो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस. आई अप्रिशिएट कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज रियली गुड. चलिए अब ये वो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. देखिए किसी का ना हाइटस हर्निया हो गया, हर्निया की प्रॉब्लम होती है, नाभि खिसक जाती है, और इसके हर्निया, उसकी वजह से हर्निया हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो नेवल एरिया का इलाज हम कहाँ करेंगे? कौन आंसर देगा? नेवल, नाभि में नाभि खिसक जाए तो कौन सी फिंगर हम यूज करेंगे? सेम सरिता जी बताइए. थंब में, थंब. कौन से थंब में? राइट, राइट. राइट थंब पे. वेरी नाइस, राइट थंब इज द राइट आंसर. ओके, हाँ नहीं सविता जी, राइट इज ओके. सरिता जी ने सही आंसर दिया, राइट. लेफ्ट में एनस है, गुदा द्वार, यानी कि कोई भी ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह होगी वो इस पे इलाज होगा. वेरी नाइस, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब. वेलकम मिसेस आलम, welcome to this color therapy training. Okay, now there are so many people joining, that's okay. चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल आई वांट यू टू आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अब ये बताइए मुझे कि अगर किसी को ओके किसी को हेमोराइड हो गया, हेमोराइड हो जाता है, जैसे कि जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं, हेमोराइड भी कहते हैं. हेमोराइड किसी को हो जाता है, वो इलाज कहाँ पे करेंगे हेमोराइड पे? Who will like to answer? Give me the thumbs up because so many people are giving thumbs up. I can't see. Okay, Savita ji, you try first. Yes. Awesome, very good. Okay, she's given answer, and I know Samji, you are already good. I know you are always good. You are a genius. So I mean, I'm coming to you a little later. That's okay. Very good. So anus, bleeding piles हो गए anus. Very good. So अभी तक हमने इसको cover कर दिया. Now let's move on to the next chart. ठीक है. ओके, नाउ बिफोर वी गो टू नेक्स्ट चार्ट, नाउ आई वांट यू टू, बेस्ड ऑन दिस जो भी हमने अब पढ़ा है, अब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे. आस्क मी क्वेश्चन. चलिए रेज योर हैंड, अभी आप इसका क्वेश्चन आंसर लेंगे. हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? अभी तो मैंने बताया ना आपको सारे आंसर, अब आपको भी तो क्वेश्चन पूछने ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए. अभी तो हमने, यस प्रियांशी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मुझे मसल पेन बहुत रहता है पूरी बॉडी में. वेरी नाइस, मसल पेन. काफी ज्यादा क्लमजी फील होता है, लाइक कहीं पे भी लुढ़क जाती हूँ ऐसा सिनेरियो है. ये इसमें दो तीन चीजें, मसल पेन हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा कि मसल पेन का मसल कारण क्या है. पेन एंड मैं पढ़ नहीं पा रही अच्छे से ज्यादा देर बैठ के. अच्छा, वो दो तीन अलग अलग चीज हो गई ना. मसल पेन इज डिफरेंट थिंग एंड पढ़ नहीं पाए तो कंसंट्रेशन का हिस्सा है. तो अभी हम भी लर्न, कंसंट्रेशन नहीं, मुझे बैक पेन हो रहा है, लाइक बैक पूरी पेन हो रहा है. चलिए बैक पेन पे भी बताएंगे, बैक पेन का चार्ट आने वाला है इसके बाद. अभी जो हमने सीखा ना उसके बेस पे बताओ, पूछो क्वेश्चन. Sir, for running nose.
रनिंग नोज। Yeah. वाज दिस क्वेश्चन? कौन पूछ रहा है? सविता जी आपने? ओके, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। आप सब लिख लो इसको, रनिंग नोज। रनिंग नोज, कोई भी चीज बह रही है हमारी बॉडी में, कोई भी चीज बह रही है, बह रही यानी कि वहां पे पृथ्वी तत्व कम हो गया है और पानी यानी कि हमारा जो वाटर एलिमेंट बढ़ गया है, तो पृथ्वी तत्व को हमने वहां पे बढ़ाना है। रनिंग नोज के लिए हम कहाँ पे लगाएंगे कलर, और कौन सा कलर लगाएंगे? सारा मुझे कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का? सविता जी का क्वेश्चन है ये, रनिंग नोज में हम क्या करेंगे? ओके, लेट्स कम टू श्याम जी। श्याम जी बताइए, कौन सा कलर, कौन सी फिंगर, क्यों? Sir, yellow color, red, little ring finger. रिंग फिंगर, येलो कलर इज द राइट आंसर, यस, वेरी नाइस। देखिए रनिंग नोज हो रही है, नाक से पानी बह रहा है, यानी कि वाटर एलिमेंट बढ़ रहा है। अब डैम की बात की थी ना, डैम है, डैम रोकता पानी को, तो हमारा वाटर एलिमेंट, उसको रोकने के लिए हम अर्थ का एलिमेंट का यूज करेंगे येलो कलर यहाँ पे, इस वाली फिंगर के दोनों। अच्छा, एक चीज और है, यस, रिंग Right hand फिंगर, and left hand. Ring finger. Okay. हाँ, दोनों रिंग फिंगर में यूज करेंगे, लिख लिए सारे इसको, दोनों रिंग फिंगर पे हम यूज करेंगे येलो कलर का। एक चीज और बता दूं, जब भी कोई चीज बह रही कहीं से, रनिंग नोज हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, यानी कि वहां पे हमने लूज मोशन को रोकना है, एंड टू स्टॉप इट वी विल यूज ब्लैक कलर। लेकिन एक चीज, विल यूज येलो कलर। एक चीज और, जब भी ऐसा कभी होता है, उसका कारण होता है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन का कारण होता है वहां पे, तो वहां पे येलो के साथ हम ब्लैक भी यूज करेंगे। लिख ले सब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कुछ बह रहा है, बहने के Yellow and black, हम sir. ब्लैक एंड येलो यूज करेंगे। How, sir? We should. या हाउ शुड यू अप्लाई, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि अप्लाई कैसे करना कलर का, ये भी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे स्केच पेन हम यूज करते हैं, इसके अंदर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्केच में चले जाएंगे, ठीक है। अभी हमने बात करी है रनिंग नोज की, तो हम क्या करेंगे, ये उंगली है हमारी, हमने क्या करना है, इसके चारों तरफ, ये जो ज्वाइंट है इसकी चारों तरफ ऐसे धीरे से हमने कलर लगा देना, ऐसे चारों तरफ, जैसे रिंग बनाते हैं हम, चारों तरफ रिंग बना देंगे इसका। अब ये देखिए येलो कलर ना दिखता कम है, तो चारों तरफ हमने इसके चारों तरफ इसके रिंग बना देंगे ऐसे, यहाँ पे चारों तरफ हमने रिंग बना दी, और उसके ऊपर फिर हम ब्लैक कलर यूज कर लेंगे। उसके ऊपर हम स्केच में उसके ऊपर कलर हमने ब्लैक कलर यूज किया, ठीक है। चलिए, Sure, sir. yeah, I'm showing it just now, hold on. Black color is dyed. ओके, देखिए ऐसे, ये ब्लैक कलर ऐसे यूज कर देना हमने, ब्लैक कलर ऐसे, एक कलर ऐसे यूज करेंगे, और से दूसरा कलर थोड़ा उससे ऊपर और थोड़ा नीचे, एक रिंग बनाई हमने, और उसके बाद जैसे एक कलर लग गया, पहले येलो दिखता कम है, उसके बाद हम थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे एक और रिंग बना देंगे, 2 रिंग्स, 2 रिंग बना देंगे। सो हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया सबको? गिव मी थम्स अप। यस, ओके, वेरी नाइस, रिंग बनानी हमने, वेरी गुड, ओके, चलिए, गुड जॉब। और बताइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, एनी क्वेश्चन, हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? जो Sir, भी knee pain, sir. हाँ जी, Hello. For knee pain. for the knee pain, very good Yeah. question. For if there is any swelling on the knee pain. Yes, swelling on the knee pain. Yeah. There's a knee pain. I Yeah. want to answer you this question. अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी आप लिख लीजिए, कोई भी प्रकार का नी पेन होगा, उसके लिए हम दोनों फिंगर के, रिंग फिंगर की मिडिल जॉइंट पे कलर लगाएंगे, रेड एंड लाइट ब्लू, रेड एंड लाइट ब्लू, लिख ले इसको, रेड कलर एंड लाइट ब्लू हम यूज करेंगे दोनों। अभी जहां पे हमने कलर लगाया, यहीं पे रिंग, हमारा नी पेन का इलाज होता है, वो करेंगे रेड एंड ब्लू, स्काई ब्लू। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जो कलर हमारे होते हैं ना, अधिकतर एक तो ये वाला कलर है, दिस इज कॉल्ड, whenever I am talking about the blue color, I am talking about this light blue. Okay, I am not talking about the dark blue.
डार्क ब्लू कलर इज अ विंड, जो गहरा डार्क होता है दैट्स विंग, दैट्स नॉट फॉर दिस। तो जहां भी मैं लाइट ब्लू की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कलर। ठीक है, चलिए यस बताइए। हाँ यस दैट्स राइट सविता जी, राइट। ठीक है, चलिए गुड। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए ठीक है, मूव करते हैं आगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे, भी बहुत सारी चीज सीखनी बाकी है। अब आ जाए दूसरे चार्ट पे, ये चार्ट अपने नोट कर ले और हम दूसरे चार्ट पे आएंगे। ये देखो कि हिंदी में भी लिखा हुआ, ऑल्सो रिटन इन हिंदी, हिंदी में भी लिखा हुआ नाभि, गुदा, बाई आंख, दाई आंख। सो आपको ये दोनों चीज मिलेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आ जाए यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट करें। एंडोक्राइन सिस्टम। अभी देखिए, जिन्होंने डायबिटीज का क्वेश्चन पूछा था ना, उन जिन्होंने थायराइड, उसका सारा आंसर मैं देने वाला हूँ इसके अंदर। अभी देखो ये कलर कहाँ यूज करना है हमने। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि जो ये कलर थेरेपी हम सीख रहे हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। दिस कलर थेरेपी विच वी आर लर्निंग इज बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब जो हमारे ज्वाइंट है, पहले इस बात को समझ लें आप सारे, जो हमारे ज्वाइंट है, हमारे हाथों में, हमारी हाथों में 3 ज्वाइंट होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, और हमारे थंब पे 2 ज्वाइंट होते हैं, 1 और 2। ठीक है, अब ये 3 ज्वाइंट कौन कौन से, ध्यान को देखिए। सबसे जो लोअर ज्वाइंट है, दिस इज कॉल्ड कफ ज्वाइंट। आप लिख लें इसके, लोअर ज्वाइंट कफा ज्वाइंट, कफा, KAPHA, कफा, कफा ज्वाइंट। यू माइट हैव हर्ड, आपने जरूर सुना होगा, आयुर्वेद के अंदर कहते हैं वात पित्त कफ, वात पित्त कफ वी हैव टू बैलेंस। सो दिस इज कॉल्ड कफा ज्वाइंट, दिस इज कॉल्ड पित्त ज्वाइंट, PITTA, and last is called Vat joint, top one. कफा पित्ता वाता, कफा ज्वाइंट। कफ का क्या मतलब होता है? कफ एक प्रकृति होती है, हमारे नेचर होता है, जिसमें कफ आता, फ्लैग्म हो जाता बॉडी के अंदर, म्यूकस बन जाता, कफ बन जाता, बहुत जाता, दैट्स कॉल्ड फ्लैग्म। पित्त होता है, पित्त का मतलब होता है हीट इन द बॉडी। पित्त बढ़ गया, किसी का स्किन प्रॉब्लम हो रही है, पित्त बढ़ गया, किसी का गुस्सा बहुत आता है, पित्त बढ़ गया, किसी को बहुत इरिटेट हो जाता है, पित्त बढ़ गया, किसी का बहुत एग्रेसिव हो जाता है, सुनता नहीं है बात, एकदम रिएक्ट कर देता, पित्त बढ़ा हुआ है। छोटे बच्चों का पित्त बढ़ा होता है, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं उनका पित्त बढ़ जाता है। बचपन में हमारा कब बढ़ता है? व्हेन वी आर द चिल्ड्रन, वी आर वेरी स्मॉल किड्स, देन कफा इज इंक्रीज। कफ आप देखो, सबसे छोटे बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार ये ज्यादा होता है। जब बड़े हो जाते हैं, तो जब हम एडोलेसेंट की उसमें रहते हैं, तब हमारा पित्त बढ़ता है। पित्त का मतलब है गर्मी रहती है बॉडी में, हर समय मारने मरने को तैयार रहते हैं हम, वेरी एग्रेसिव। बच्चे बहुत तेज होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। और बाद में वात, वात बढ़ जाता है। वात मतलब होता है कि आफ्टर 40 years ऑफ द एज, और वात यानी कि ऑल द बोन रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्रीज। वात का मतलब होता है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, हमारे जितनी भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, माइग्रेन, बिकॉज ऑफ ऑल, दैट्स कॉल्ड वात दोष। सो कफा, पित्ता एंड वाता, ये आप लिख लो बस, इसलिए मैंने आपको बताया, सो दैट यू नो कि हम जो कलर लगा रहे कि इन पे क्यों लगा रहे। चलिए अब आ जाए। ओके, बिफोर आई गो टू दिस चार्ट, क्या आप सबको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? गिव मी थम्स अप, थम्स अप करें। थम्स अप करने में आपको एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यस, वेरी गुड, ऑसम। सो अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है फिर भी आप थम्स अप करें, और बिकॉज देखो आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलेगी, और मैं अगर सही पढ़ाऊंगा तो यू विल लर्न बेटर। ओके, वंडरफुल। चलिए देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा, अभी बहुत सारी चीजें ऊपर से जा रही होंगी, मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंसान सीखता है, लेकिन बाद में कल तक यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस थेरेपी। आप मुझे सिखाने लग जाओगे, ये गारंटी में दे रहा हूँ। एंड श्याम जी knows it because now he's already done it before, so he can treat so many diseases. And let me tell you one thing, this is one of the best therapies which we are learning, one of the best therapies. तो you will, आप क्वेश्चन होता है लोगों को, यार कलर से कैसे काम होगा? या तो दवाई खाते हैं, या तो होम्योपैथी चल रही है, या तो हम योगा कर रहे हैं, या तो हम रेकी करते हैं, तो वो तो एनर्जी समझ में आता है, इससे कैसे काम होगा? लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज आउट ऑफ मेनी. सो एवरी थेरेपी इज वंडरफुल, बट दिस वाज व्हाट आई फेल्ट इन द लास्ट 20 years. चलिए, ये सविता जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. No, Okay. no, sir.
Are you getting what I'm saying? आपको मिल रहा है? You are able to understand? Yeah, I can understand. I really appreciate that. Okay, एक छोटी सी चीज, let me go quickly. Now, hey, I really missed one thing today. इससे पहले कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पे जाए, थोड़ा मैं, बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते नहीं है, so I would like to give me, I want to take your permission. Can I share about myself in 1 minute? थोड़ा मेरे बारे में, क्योंकि पहले ये चीज होनी थी, I just missed it. तो before we go further, थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ. Can I tell you something about myself? Yes? In 30 seconds. Okay. तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि यार मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ. Who am I? मेरी क्या अथॉरिटी है, तो क्या मैं जानता हूँ. तो थोड़ा मैं अपने आप को, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ कि who am I, ताकि आपको पता चले कि थोड़ा what is the learning I've got, so you know why I'm teaching you. So मेरा नाम राकेश बलूनी है, आप सब लोग जानते हैं, you know my name is राकेश बलूनी and I am in the field of yoga for the last 20 years. मैं पिछले 20 साल से योगा में हूँ and my mission is to help more than 10,000 people, especially entrepreneurs and middle-aged people who are sitting at home to become their own healer. मैं चाहता हूँ कि जो हर घर में एक हीलर हो, हर व्यक्ति अपना इलाज खुद करे, हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत न पड़े, हमें मेडिकल एक्सपेंडिचर की जरूरत न पड़े और हम अपनी हीलिंग करें. ये मेरा मिशन है. आई वांट टू हेल्प सो मेनी पीपल. तो ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में है. योगाचार्य हूँ मैं फ्रॉम द गुरुकुल कांगड़ी. आई एम आल्सो अ डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथ and I've learned 11 therapies apart. I'm a master Reiki healer. I've done FDT, NLP, EFT, TFT, hypnotherapy, auricular therapy, acupressure color therapy. So all these things I've already learned. And if I talk about a little bit about myself, so I have really appeared in many different news channels as a guest panelist. कई न्यूज चैनल में मेरी ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ. मतलब I got opportunity to share stage with many great people. तो काफी न्यूज चैनल में मेरी प्रोग्राम आ चुके हैं. ऐसे कम से कम 150-2 दर्जन प्रोग्राम में आ चुके हैं न्यूज चैनल्स के अंदर. सहारा न्यूज में लाइव कई प्रकार की मेरी ऐसी प्रोग्राम आ चुके हैं. एंड आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल. आई वर्क विद एंटरप्रेन्योर्स. इन सबको मैं सिखाता हूँ. ऑल दिस पीपल आई लर्न, आई टॉट देम एंड दिस इज माय मिशन. आई एम अ हेल्थ अबंडेंस कोच. आई एम द फाउंडर ऑफ ओम शांति योगा and I expertise in weight loss, health mastery, and so many other things. So just to cut long, I'm also author of a book called Scientific Yoga for Corporate Success. ये बुक मैंने लॉन्च किया है, अभी थोड़ा इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये आपको अमेजोन में मिल जाएगी. Scientific Yoga for Corporate Success. I'm the also author of this book. And ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था. And that's all from me. I've been awarded by different TV organization as an icon award, Om Shanti Yoga. So that's a little bit about myself. थोड़ा सा I thought to share with you about myself. मेरा YouTube चैनल है and you can see so many videos on my YouTube channel. और जो मेरे ट्रेनिंग लोगों को, मैंने डॉक्टर्स को भी मैं सिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया. So ये थोड़ा सा little bit about myself so that you know who am I and why I'm teaching it. So thank you. It's an effort that I want to share with you maximum, and I want to create people a disease-free life, issueless mind, disease-free life, and I don't want people to take medicine. That's my mission. So why I'm doing it, let me share with you a little bit. When I was a child, जब मैं छोटा था, I had a severe accident. बचपन में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ. And I was 5 to 6 years old, and so happened I was taken to hospital, Safdarjung Hospital in Delhi, and doctor had given up the hope. After 72 hours of the ventilation, doctor ने बोला कि now we can't survive him, we can't save the child. Everybody was crying in the family, and they thought I'm totally died. I was dead. But suddenly some miracle happened. कुछ चमत्कार हुआ, and I was alive. I came from the hospital, लेकिन my life was like only as dead as hospital, because बहुत महीनों तक, सालों तक मैं बहुत कमजोर, वीक पड़ गया था, ब्लैक हो गया था मेरा फेस, and lot of stitches on my face. तो severe accident. तो मैं बचा हूँ लाइफ में. I was weak. और मेरे आसपास जो लोग थे वो बहुत सारे क्रिटिसाइज करते थे, ये तो ऐसा है वैसा है, he won't be able to survive, he will die. So मेरी कंडीशनिंग होगी माइंड की, I have to do something tomorrow. But I was weak. And so many years I lost my cognitive ability. आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पढ़ाया जा रहा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था.
जो बच्चे बात कर रहे थे, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई लॉस्ट माय कॉग्निटिव एबिलिटी, आई लॉस्ट इट। डिसलेक्सिया टाइप का मेरा कुछ हो गया था बिकॉज टू मच लॉस ऑफ द ब्लड। लेकिन देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू शो टू द पीपल, आई डिसाइडेड कि आई वांट टू टर्न माय वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, मैं अपनी कमजोरी को स्ट्रांग बनाऊंगा। और मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने योगा किया, योगा मेरी लाइफ में आया, मैंने बुक पढ़ा और उसके बाद सही कोर्सेज करने शुरू कर दिए, एंड देन लाइफ चेंज आफ्टर दैट। सो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसकी वजह से आज आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम सिचुएशन वेयर आई हैव वेंट थ्रू, एंड दैट्स द रीजन आई एम टीचिंग यू। दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ। ओके, चलो अब जो है लेट्स गेट टू दी, अब पॉइंट पे आ जाते हैं साथ सीधे। और अब हम पहुंच जाएंगे उस चार्ट पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए ओके, अब देखिए क्या है, अभी हमने पढ़ा था, अभी उंगली को देखिए, राइट हैंड, इसमें लिखा है, देखो चार्ट में लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड जॉइंट्स। हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स है ना, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे हार्मोन गड़बड़ हो गया, थायराइड गड़बड़ हो गया, अधिकतर जो प्रॉब्लम हमें होती है हमारे हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होती है। पीसीओडी, पीसीओएस, फेशियल हेयर, हार्मोन की गड़बड़ी से होती है। द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द हार्मोन्स। अब देखिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए, राइट हैंड पे हम ये इलाज करेंगे थाइमस ग्लैंड का। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे थाइमस ग्लैंड का इलाज होगा, यानी कि पहली उंगली पे थाइमस ग्लैंड। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, 14 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम इलाज करेंगे थाइमस ग्लैंड पे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थाइमस ग्लैंड पे इलाज होता है। और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर इलाज है पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज यानी कि यहाँ पे हम डायबिटीज का इलाज भी करेंगे, यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेंगे, यहाँ पे हम एसिडिटी का भी इलाज करेंगे। स्पेशली पैंक्रियाज हम इलाज करते हैं डायबिटीज के लिए। राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड होती है स्पिरिचुअल ग्लैंड, यानी कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनी को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी योगी लोग होते हैं वो अपनी अवेकनी को बढ़ाने चाहते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसमें यहाँ पे इलाज करेंगे पीनियल ग्लैंड, मिडिल फिंगर, राइट फिंगर, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड की पिट्यूटरी पे इलाज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, अगर आप बच्चों की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो इलाज करेंगे लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे। लिखते जाए साथ साथ। अब राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे इलाज होगा पैराथायराइड का। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हमारी बॉडी में, तो पैराथायराइड पे इलाज होता है राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे इलाज, राइट हैंड की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट में थायराइड का इलाज करेंगे। किसी का थायराइड बढ़ गया है, किसी का थायराइड घट गया है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड का इलाज होगा लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे, रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है, पिंकी छोटी फिंगर, उस पर इलाज टेस्टिकल ओवरीज का इलाज होगा। यहाँ पे टेस्टिकल, मेल में टेस्टिकल की ओवरा जो इलाज यहाँ पे करेंगे, और ओवरीज का इलाज यहाँ पे होगा। ओवेरियन सिस्ट हो जाता है किसी का, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, इलाज यहाँ पे होगा। टेस्टिकल लार्ज ऑफ टेस्टिकल, ये सारी चीज इलाज यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे हम इलाज करेंगे एड्रिनल ग्लैंड का, यानी कि किसी को अगर डर लगता बहुत ज्यादा, कोई डरपोक इंसान है, टिमिड है, डरपोक है, उस पे लेफ्ट में एड्रिनल ग्लैंड को पे इलाज होगा उसका। अब एक बार इस चार्ट को आप देख लें, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चार्ट में। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट लुक एट दिस चार्ट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इस बीमारी के बारे में, कि जो भी हमने बात करी है कि कौन कौन सी बीमारी में कौन सा इलाज करेंगे, तो उसमें एक चीज और बात कर लेते हैं कि हम कैसे इलाज करेंगे इस पे। एग्जाम्पल के तौर पे, लेट मी टेक टू दिस वंस अगेन। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए किसी को पैंक्रियाज, किसी को प्रॉब्लम है डायबिटीज की। अब डायबिटीज का कोई जो क्वेश्चन पूछा था सरिता जी ने, अब सभी लोग लिख लें, डायबिटीज का इलाज हम लेफ्ट हैंड की पैंक्रियाज पे करेंगे, और डायबिटीज के लिए हम यूज करेंगे लाइट ब्लू कलर का। यहाँ पे हम लाइट ब्लू कलर लगा देंगे।
ठीक है, अभी इधर भी इलाज होगा, वो मैं क्यों इलाज होगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन लेफ्ट हैंड की पैंक्रियाज पे इलाज हम डायबिटीज का करेंगे, यानी कि ब्लू कलर यहाँ लगा देंगे। राइट हैंड की जो थाइमस ग्लैंड है, बच्चों की अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इलाज करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लू, लाइट ब्लू एंड ऑरेंज। लाइट ब्लू एंड ऑरेंज। लाइट ब्लू क्यों? क्योंकि लाइट ब्लू अग्नि का कलर है, वो एक्टिवेट करेगा थाइमस को, और ऑरेंज गिव द नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स बढ़ा देगा, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। पिट्यूटरी, हाइट नहीं बढ़ रही बच्चों की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पिट्यूटरी का इलाज करेंगे। पिट्यूटरी गैलर में क्या करेंगे? लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। लिख ले इसको, टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन वी विल यूज ब्लू, लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम लाइट ब्लू ऑरेंज कलर का यूज करेंगे राइट हैंड की बीच वाली उंगली पे, पीनियल ग्लैंड पे। जैसे कोई स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी योग कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना, तो यहाँ पे यूज करेंगे। थायराइड को यूज करने के लिए, अब देखिए थायराइड में दो प्रॉब्लम होती है लोगों की, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो में क्या होता है कि लोगों का वेट बढ़ता है। हाइपो मतलब जो है कि जो थायराइड जो ग्लैंड होता है हमारा, उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, घट जाती है। तो थायराइड ग्लैंड में अगर हाइपो हो रहा है किसी का, यानी कि वेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर। लिख लीजिए इसको। किसी की कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो पैराथायराइड पे इलाज होगा लाइट ब्लू येलो कलर, लाइट ब्लू एंड येलो। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कोई डरपोक है, डरता है बहुत ज्यादा डर जाता है किसी चीज को देख के, और बूम कोई आवाज मारता है बहुत डर लगता है, तो ऐसे एड्रिनल ग्लैंड पे इलाज करेंगे हम। टेस्टिकल ओवरीज, ओवरीज में सिस्ट हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, इलाज यहाँ पे होगा। टेस्टिकल का इलाज यहाँ पे होगा। टेस्टिकल हर्निया किसी को हो जाता है, इलाज यहाँ पे करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर किसी को हो जाता है, यहाँ पे इलाज करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, कम बैक। चलिए अब थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइट ब्लू, अरे क्यों बोला मैंने। देखिए लाइट ब्लू को तब जानते हैं, लाइट ब्लू इज द कलर ऑफ फायर। फायर कोई भी चीज जलाता है, फायर क्या करता है? तेज करता है। फायर तेज करता है किसी चीज को। कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत तेज है उसकी अग्नि बढ़ी हुई है। तो हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन का फंक्शन कम हो रहा है तो हमें फायर यूज करना है, यानी कि लाइट ब्लू। और ऑरेंज कलर नर्व इंपल्स देता है। ऑरेंज कलर हमने पढ़ा था नर्व इंपल्स देता है, लेकिन उसका क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने बात करी कि कोई भी ऑर्गन की अगर हाइपो हो गया, यानी कि हार्ट बीट स्लो हो गई, तो उसकी इंक्रीज करना है तो हम उसको ऑरेंज कलर लगा देंगे। ऐसे थायराइड की, हमारा ब्रेन ना एनर्जी को जनरेट करता है, और उस करंट को ले जाने से हमारा स्पाइन इसको ले जाता है उस ऑर्गन तक। तो जब वो किसी की फंक्शनिंग कम हो जाती है तो हमें नर्व इंपल्स को बढ़ाना पड़ता है। नर्व इंपल्स बढ़ेगी तो वहां पे और तरंगे जाएंगी ब्रेन से, और वो फंक्शनिंग होनी हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो नर्व, ऑरेंज कलर कोई भी चीज की नर्व इंपल्स को बढ़ाता है, इसलिए हम ऑरेंज कलर को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके बाद बात करी थी, जिसकी मोमेंट ओके, तो अब हमने बात करी थी इसके बाद पिट्यूटरी हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड के लिए किसी का बढ़ा हुआ है तो हमने लाइट ब्लू एंड ऑरेंज यूज करना है। किसी का घटा हुआ है, किसी का घट गया है, किसी का हाइपर हो रहा है, तो हाइपर के लिए हम कोई चीज सीक्रेट तेजी से हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको होल्ड कर देंगे, और होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे येलो कलर लगा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। चलिए अब जो है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे करेंगे यहाँ पे। वो ये बताइए मुझे कि अगर किसी का किसी की बॉडी में पैंक्रिया, वो थाइमस, क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज किसी को बढ़ी हुई है, तो डायबिटीज के लिए कौन सी उंगली यूज करेंगे और कौन सा कलर? अनम्यूट करें। हाँ, कौन सा कलर यूज है सरिता जी? लेफ्ट हैंड, चलिए एक एक करके आते हैं।
लेफ्ट हैंड की कौन सी, लेफ्ट हैंड की कहाँ पे होगा कलर, कलर कौन सा यूज करेंगे? ब्लू कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू? डार्क ब्लू। ब्लू इज राकी, बट डार्क ब्लू नहीं यूज होगा। ब्लू इज राइट आंसर। सविता जी आप बताइए। Light blue, light blue. ऑसम, वेरी गुड, राइट ब्लू आंसर, ये वाला। Yeah, light blue. बहुत जबरदस्त थेरेपी है, लाइट ब्लू लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, वंडरफुल। दैट्स वी विल अप्लाई। अभी और अब एडवांस सीखेंगे कि इसके साथ एक और कलम यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर प्यूरिफाई भी करना पड़ता है ब्लड को, तो उसके लिए एक उंगली हम बताएंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा बॉडी के अंदर अगर हम बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी उंगली में इलाज होगा, क्या कलर यूज होगा? चलिए, हु विल लाइक टू आंसर? बच्चों की हाइट बढ़ानी है, Left hand, middle finger. लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, Yellow. विच कलर? No idea. No idea, sir. ओके, सो आधा क्वेश्चन इज Light blue orange. श्याम जी, Light blue orange. ऑसम, वेरी गुड, लाइट ब्लू ऑरेंज राइट कलर। बच्चों की हाइट को बढ़ाना, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो लाइट ब्लू ऑरेंज क्यों करेंगे श्याम जी, बताइए। लाइट ब्लू एंड ऑरेंज हम क्यों यूज करेंगे? आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, टेल मी। लाइट ब्लू एंड ऑरेंज हम क्यों यूज करेंगे? Sir, blue is a fire, sir, to हाँ, increase. हाँ, And orange is nerve impulse. हाँ, That's why we'll use. ऑसम, ऑसम, वेरी गुड क्वेश्चन आंसर, वेरी गुड। चलिए अब ये बताओ कि छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बार बार बीमार हो जाते हैं। अब बीमार हो जाते हैं छोटे बच्चे, तो हम कौन सी उंगली पे इलाज करेंगे और क्या कलर होगा यूज? चलिए बताइए। आप तो बता ही दोगे, मुझे पता है। आई नो यू कैन टेल मी, आई वांट टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल आल्सो। चलिए, जिन्होंने अभी रेज नहीं किया हैंड, प्लीज रेज। देखिए, सबको सीखना है और हिचकिचाना नहीं है। आंसर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो बोल नहीं सकते वो चैट में लिखें। द पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक, दो एवरीबडी शुड स्पीक, आप जो है चैट बॉक्स में लिखें। चलिए, टेल मी, ओके, टेल मी। अगर बच्चों की, हाँ, आई नो यू आर राइट, आई वांट टू आस्क अदर पीपल। आप बताना चाहेंगे संध्या जी? राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, हाँ, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। हाँ, कलर कौन सा है? कलर तो नहीं याद है। नो प्रॉब्लम, आधा Light आपका ठीक है। गुड, आंसर इज गुड, Light Blue blue and and orange. Blue and orange. ऑसम, ऑसम, वेरी गुड, ब्लू एंड ऑरेंज, या दैट इज द राइट आंसर। ग्रे और ऑरेंज। नेक्स्ट फिंगर ब्लू एंड ऑरेंज यूज करेंगे, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, 14 साल से नीचे बच्चों की। ओके, गुड। अच्छी बताइए मुझे दो और, अभी दो और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, फिर यू विल अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करें आप। अभी जब तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बेस पे अभी हम 5-10 मिनट में ब्रेक करने वाले, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर, आई वांट एवरीबॉडी टू आस्क क्वेश्चन। सो लेट मी जस्ट टेक यू दिस एंड अनदर क्वेश्चन। मैं जानबूझ के ये भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, ओके ओके ओके, चलिए बताइए मुझे, किसी का जो ना थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, थायराइड यानी कि किसी का वेट घट रहा है, यानी कि हाइपर हो गया, कौन सी उंगली, कौन सा कलर एंड क्यों? कौन बताएगा श्याम जी के अलावा? आपसे तो बाद में मैं पूछ ही लूंगा, अदर पीपल। आप पिछली क्लास में भी आपने सारे आंसर दे दिए थे। चलो, हु विल लाइक टू आंसर? देखो, ट्राई कर लो, हु विल आंसर? काशिफ जी, रेवती जी। Left hand, sir. लेफ्ट हैंड, रिंग Light blue and yellow. I don't know which color. लेफ्ट हैंड, Left hand. Huh? Ring. I think so. This finger. थायराइड कौन सा है? यस, देखो हमने, देखो थायराइड कहाँ आ रहा है, देखो चेक करो थायराइड कहाँ आ रहा है। ये चार्ट है आपके सामने, थायराइड कहाँ पे आ रहा है? बीच वाला। अभी देखो हाइपर हो गया, दो चीज, हाइपर मतलब
नहीं जा रहा उसका हाइपर मतलब कोई चीज गिर रही है वहां से, तो हमने होल्ड करना। होल्ड करने के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम? Light blue and yellow. होल्ड करने के हो गया, हाइपर हो गया ना होल्ड के लिए। ओके सभी आप ब्लू, आप बताइए। येलो, होल्ड करने के लिए येलो कलर। येलो इज गुड, राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए येलो कलर यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे? तो येलो, अब थायराइड हो गया किसी को, थायराइड दो प्रकार के होता है, एक होता है हाइपो, हाइपो में उसका वेट बढ़े जा रहा है क्योंकि वहां पे सिक्रीशन बिल्कुल कम हो रहा है, सिक्रीशन नहीं हो रहा वहां पे। जब सिक्रीशन कम होता है हमें सिक्रीन को बढ़ाना है ना, और सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए हम लाइट ब्लू एंड ऑरेंज यूज करते हैं। लेकिन किसी का ऑलरेडी सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी वहां पे TSH थायराइड ये सारा निकल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है। होल्ड करने के लिए येलो इज द राइट आंसर, वेरी गुड, येलो इज द राइट आंसर, वंडरफुल। चलिए अब जो है आई कैन सी सिमरन जी, सविता जी, राजेश जी, रेवती जी, प्रियांशी जी और काशिफ यानी कि मिसेस आलम जी, ऑल ऑफ यू कोई विल आस्क क्वेश्चंस। चलो अभी जो भी आपका क्वेश्चन है एक एक करके, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो भी आपका क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दिस जस्ट आस्क मी क्वेश्चन, जो आपने नोट डाउन भी किए। और सब जब एक चीज ध्यान रखें, देखिए जब एक इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा उसको जरूर नोट कर ले। अब ये बताया मुझे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम श्याम जी। श्याम जी क्वेश्चन क्या आपका बताइए, अनम्यूट कर ले। Sir, this is the color therapy we have to use how many days? For how many days? Till the time the problem gets cured. How come we come to know it, sir? You will realize it. For example, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, somebody's got a skin problem and now you keep apply, आप अप्लाई करते जाओ। अब आप देखो अब स्किन में प्रॉब्लम खत्म हो गई है, धीरे धीरे आपको वो मतलब वहां पे इरिटेशन नहीं हो रही है, बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा, then you can stop it. So ideally I will say 3 months you should apply। अगर ज्यादा सीवियर है और थोड़ा प्रॉब्लम है तो 10-15 दिन में ही चला जाएगा। Sir, infection in the urine for kids. इन्फेक्शन यूरिन फॉर द किड्स, सो अच्छा इन्फेक्शन अगर यूरिन में है तो उसके लिए आई वांट, अब औरों को जरा मेरे को बताओ कौन सा कलर यूज करेंगे हम। अभी हम वो वाला पॉइंट पढ़ने वाले, फिर भी कलर इन्फेक्शन के लिए कौन सा कलर बताया था? ब्लैक इज द राइट आंसर। हम यूज करेंगे उसको जहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अब आने वाला हो चार्ट हमारा, Okay, sir. यूरिनरी ब्लैडर जो चार्ट है, किडनी वाला पॉइंट है, वो भी आप सीखे होंगे। Okay, sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. वंडरफुल। चलिए और किसका क्वेश्चन है? देखिए जो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे लोग उसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आस्किंग? यस, अनम्यूट कर ले प्रियांशी जी अपने आप को। सर मैं मसल्स के लिए क्या करूं? बॉडी मसल्स के लिए क्या, मसल्स क्या हो रहा है? वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे पेन होता रहता है अपनी body लेग मसल्स में। नहीं मसल्स में, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है? हाँ बॉडी पेन। पूरी बॉडी पेन के लिए अभी हम सीखेंगे उसको, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के बीच वाला जॉइंट है हमारा एडिपोज टिश्यू, उसमें हम लगाएंगे लाइट ब्लू एंड रेड कलर। पहले लाइट ब्लू फिर उसके ऊपर रेड कलर? कोई भी लगा सकते हो, पहले रेड ब्लू लगा लो या पहले रेड लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट एक कलर लगाना, फिर उसके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे दूसरा कलर लगा देना है ओके लेफ्ट हैंड की। और एक चीज आपको बता दूं कि देखिए जब भी whenever we apply this color, जब भी हम इस कलाई का अप्लाई करेंगे शुरुआत में फर्स्ट टाइम we will apply only for 40 minutes। 40 इसको हम मिनट। वॉश कर देंगे पानी से, ये अगर रिमूव नहीं हो रहा नेल पेंट से रिमूव कर देंगे, जो रिमूवर होता है। एसीटोन। उसके बाद 4 से 8 घंटे हम लगा सकते हैं, रात को लगा दें सुबह उसको वॉश कर दें। हाँ ठीक है, तो ठीक यहाँ है। पे मैंने बताया। ओके थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कौन पूछना चाहता है? ये सविता जी प्लीज। Why only 40 minutes, sir? It is actually 40 minutes as per the Ayurvedic acupressure. We should try the color for 40 minutes in the beginning to get its exactly इसका impact कितना है। After that, not just First time, skills. no, for first, Example, हाँ बताइए। for first time I should use for 40 minutes, that's all. Then That's- wash it out. Yes. Okay. Then again we can use it for 8 to 10 hours. No, 4 to 8 hours. 4 to 8 hours. Okay, हाँ, thank you. क्योंकि देखिए होता क्या है कि what happens,
हमें स्लोली बॉडी में एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है। Okay. ऑल ऑफ द सडन एग्जाम्पल हमने लगा दिया और एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो और गड़बड़ हो सकता है। Okay, sir. Thank you. अगर गलत कलर यूज करेंगे, गलत जगह यूज करेंगे, साइड इफेक्ट भी है, लेकिन वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको राइट पॉइंट पता हो तो। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ कलर थेरेपी, पर गलत नहीं यूज कर देंगे। ठीक है, तो Okay, 40 मिनट्स फर्स्ट टाइम। सपोजली आई नेवर अप्लाइड कलर, तो आई विल यूज 40 मिनट्स ओनली। एक बार मैंने कर लिया, उसके बाद मैं 4 to 8 आवर्स इसको कर सकता हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वंडरफुल, That's all, sir. गुड गुड। चलिए, और कौन पूछना चाहता है अभी तक जो हमने पढ़ा? प्लीज आस्क क्वेश्चंस। प्रियांशी, आस्क क्वेश्चन। सविता जी, यू वांट टू आस्क अगेन? हाँ बताइए। मैंने पूछ लिया, मेरा और नहीं पूछना, वो ठीक है, मैंने no हाथ problem. लोअर नहीं किया। सविता जी आप पूछिए। Sir, any pain in ankles? पेन इन एंकल, बहुत Yeah. बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ अभी इसके बाद हम वही चार्ट पढ़ने वाले हैं। और पेन के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? कोई भी पेन हो बॉडी के अंदर, हम यूज करेंगे लाइट ब्लू एंड रेड कलर। राइट डाउन फॉर एनी पेन, लाइट ब्लू एंड रेड कलर। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? अभी हम आने वाले हैं उस चार्ट पे जहाँ हम सीखेंगे लाइट ब्लू कलर। Light blue and red color, sir. एनी पेन, लाइट ब्लू, बॉडी में कोई भी पेन हो। देखिए, एंकल का पेन के लिए मैं बता देता हूं आपको, बीच वाली फिंगर पे हम यूज करेंगे टॉप जॉइंट पे। टॉप जॉइंट पे करेंगे पहले लाइट ब्लू एंड फिर रेड। मिडिल फिंगर, दिस इज आर एंकल, लास्ट जॉइंट, ये वाला। Okay, sir. Thank you. और एंकल बोथ फीट, अगर राइट फुट में तो राइट फुट वाला, लेफ्ट में तो लेफ्ट वाला। Light blue and red. ठीक है, चलिए, और कौन पूछना चाहता क्वेश्चन? यस, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को संजय जी। हाँ सर, अगर किसी को ब्रेन में क्लॉट है तो क्या कलर थेरेपी से वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल होता है। ब्रेन में क्लॉट है तो उसके लिए तो अब क्या करना? अभी हम बताएंगे हम कहाँ पे यूज करना है 100 कलर को, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी को ऐसा इलाज करते हैं कि किसी को पैरालिसिस हो गया और कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ब्रेन क्लॉट हुआ था उसका। अब क्लॉट क्या है? व्हाट इज क्लॉट? क्लॉट इज ए पृथ्वी। कोई भी फाइब्रॉइड है, कोई भी क्लॉट हो, कोई भी पॉलिप है, कोई भी गांठ है, बॉडी में कोई भी गांठ है, दैट इज कॉल्ड पृथ्वी। पृथ्वी को गलाने का कौन सा कलर यूज करेंगे? श्याम जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? इनका जो क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉट हो गया, कहाँ पे लगाएंगे वो तो अभी हम सीखेंगे आगे, लेकिन किसी पृथ्वी को गलाने के लिए हम कलर यूज करेंगे। फिंगर होगी हमारी कॉन्शियस माइंड, ये वाला, लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको। वी कैन डू इट। आपका जो क्वेश्चन है, यस, ब्लड क्लॉट है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है कलर थेरेपी के द्वारा। तो ब्लड क्लॉट यानी कि पृथ्वी को घटाने के लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे? Who will like to answer? इसको अनम्यूट कर लो आप। सर घटाने का मतलब? टू रिड्यूस। हाँ, टू रिड्यूस मीन्स ऑरेंज। ऑरेंज एंड वन मोर कलर। पृथ्वी को कौन गलाता है? ऑरेंज तो नव इम्पल्स देता है ना। Orange and blue, sir. येलो। ऑरेंज ब्लू इज राइट आंसर। यस, वेरी गुड। ऑरेंज एंड ब्लू इज द राइट आंसर। सो वी विल अप्लाई। कहाँ लगा अप्लाई करेंगे? संध्या जी अभी सीखेंगे वहां पे। उसमें हमारा ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, वो चार्ट अभी सीखेंगे। बट यस, वी कैन डू दिस टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, और एनी अदर क्वेश्चन? और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सर, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में हो, हाँ, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, वो लोग भी ये कलर थेरेपी पे यूज कर सकते हैं? दोबारा बोलिए। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स सर, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे बिल्कुल कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल करना जैसे है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बिल्कुल थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कलर थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं अगर आपको राइट पॉइंट पता हो। और ट्रांसप्लांट भी किसी का हो गया है तो उस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी तो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, यस सर, बहुत है ना। सारे तो उस कॉम्प्लिकेशन को लाइफ में अवॉइड करने के लिए वी कैन अप्लाई कलर थेरेपी। ठीक है, यस, वी कैन अप्लाई। यस। वेरी Sir, गुड। one more question. यस प्लीज सविता जी, प्लीज। And if we have a continuous cough, what we can use? What we can do? So cough.
सॉरी, कैन Dry यू cough. रिपीट? Dry cough. ड्राई कफ, वेरी गुड। अभी वो उंगलियां पड़ेंगे, लेकिन ड्राई कफ के लिए हम यूज करेंगे लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर। और उंगली होगी आपकी ये वाली, राइट स्मॉल फिंगर, नीचे वाला ज्वाइंट, जैसा लंग्स, ये लंग्स की उंगली है। राइट स्मॉल फिंगर, Right little finger. लोअर ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, वी विल अप्लाई लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर। Okay, sir. Thank you. Welcome. Very nice. Okay, now who has the question? Because more question you ask, more clarity मिलेगी। ये श्याम जी, go ahead. Yes, sir. Sir, gallbladder stones. Gallbladder stone. Yes, sir. Okay, yes. चलिए, स्टोन क्या है? सब पहले स्टोन क्या चीज है? स्टोन इज व्हाट? वाटर है, पृथ्वी है, क्या है स्टोन? पृथ्वी 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 है ना। अभी चलो मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूँ। लेट मी टेक यू गॉल ब्लैडर की। अब चार्ट को मैं खोल देता हूँ उसको, अब मैं आपको बताऊंगा गॉल ब्लैडर की पथरी किसी को हो जाए, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए, तो हम कौन सा यूज करेंगे। ये आ गया आपका चार्ट। लेट्स मूव, यस। So this is a chart called body organs and joints. Okay, and this is the finger for the gallbladder. Top joint of the left index finger. लेफ्ट हैंड की टॉप जॉइंट आएगा इंडेक्स फिंगर की। गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए स्टोन हम यहाँ यूज करेंगे लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर। अभी ये पढ़ेंगे, ये चार्ट पढ़ेंगे आप अभी। गॉट इट? ओके, ऑसम। एनी अदर क्वेश्चन? चलो अभी हम ब्रेक करेंगे 10 मिनट का। उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, फिर इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम सीखने वाले। हु हैज अ क्वेश्चन? ओके, सविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। For lungs, sir. लंग्स के लिए चलो। Lungs infection, yeah. ओके, गुड गुड गुड। चलिए मैं आपको लंग्स की उंगली पे ले आता हूँ, वैसे भी और पढ़ेंगे उसको हम। तो लेट्स गो टू लंग्स। देखिए ये बॉडी ऑर्गन्स का जो चार्ट है, द चार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, एंड यू कैन सी देयर इज अ लंग्स ऑन दिस फिंगर, लोअर जॉइंट लंग्स यहाँ पे आता है, LUNGS। दिस इज हियर वी विल अप्लाई लाइट ब्लू एंड ऑरेंज कलर। Okay, little finger, sir. Yes, little finger, right hand, Little finger. lower joint. Lower joint. Okay, sir. ओके, एक चीज और, जैसे कि आजकल कोरोना हो रहा है लोगों को, और उसमें क्या होती है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। Yeah. उसके लिए हम लाइट ब्लू ऑरेंज नहीं यूज करके हम यूज करेंगे उसके लिए वायलेट कलर। Violet. हाँ, सेम फिंगर वायलेट कलर, क्योंकि Only one. वायलेट गिव्स स्पेस। Okay, only one color, sir. ओनली वन कलर, वायलेट। Both the hands are only right. ओनली राइट। Right. Okay. लंग यहाँ पे आता है, इधर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, विच विल यू विल लर्न नाउ। Okay, sir. Thank you. अब लिखते जाइए अब, और जब आप धीरे धीरे देखिए, कल तक आप मास्टर बन जाएंगे। आई कैन गारंटी यू। Thank you, sir. यू वेलकम। सबसे पहले मेरे को बताइए, आर यू एंजॉयिंग? आप सबको मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे आप? इफ यू आर एंजॉयिंग, गिव मी थम्स अप। थैंक यू। आप एंजॉय कर रहे हैं, वेरी गुड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सिमरन जी, थैंक यू। थैंक यू प्रियांशी, इफ यू आर एंजॉयिंग। और उसके साथ सीखना भी है, बहुत बढ़िया। घर को, अपने आप को ठीक करना, घर वालों को ठीक करना, औरों को भी ठीक करना है, डिपेंडेंट नहीं होना किसी के ऊपर। जिन लोगों ने भी कलर थेरेपी सीखी है, मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग अब दवाई छोड़ दी कई लोगों ने तो। Sir, one more question. प्लीज। For Any fear, time. sir. Fear, Any? fear. सॉरी, कैन यू Darpok, रिपीट? darpok. What do you say? Darpok. डर हो गया, फियर, किसी को Fear. डर लग रहा है, Yeah, ठीक है। yeah. एक तो मैंने एड्रिनल वाला चार्ट बताया था, आपका एड्रिनल ग्लैंड में जाएंगे। देखिए एक चीज है कि कोई भी ना डर जाता है, कोई भी डर जाता है, मतलब एक है कि हमेशा कोई डरा रहा रहता है, डरपोक टाइप का रहता है, उसके लिए एड्रिनल ग्लैंड कौन सी उंगली में लगाएंगे? अब दिखाइए मुझे। श्याम जी, यू आर राइट। हाँ, संजय जी राइट। ये एड्रिनल ग्लैंड में यूज करेंगे हम डरपोक के लिए। और कलर स्केल होगा वायलेट एंड ग्रीन। वायलेट एंड ग्रीन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वायलेट एंड ग्रीन क्योंकि डरपोक का जो मेन कारण होता है, एक उनकी एयर बढ़ जाती है बॉडी में, एयर एलिमेंट बढ़ जाता है, एयर एलिमेंट की वजह से डर लगता है, उसको हमने स्टेबिलिटी लेके आनी है। प्लस यू कैन ऑल्सो पुट द येलो कलर, अभी आप आगे देखेंगे उसमें। No, violet, green and yellow, sir. 3 colors. only violet and green, sometime violet and green,
violet and green is for reducing the air element. For the Air little, कम हो जाएगा तो डर वो डर नहीं लगेगा उनको, और स्टेबिलिटी लाने के लिए येलो कलर. So you can also apply yellow. Both are for okay. little right finger in the middle. Left. Left finger in the middle. Okay. Yes. Okay. अभी एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो किसी को एंग्जाइटी हो जाती है, सम पीपल अब एंग्जाइटी, उसके लिए दूसरी उंगली पे लगाएंगे, वो मैं बताऊंगा. जैसे बेचैनी रहती सब लोगों को, स्ट्रेस हो जाता है, उसके लिए अलग कलर है, वो मैं उंगली भी आपको बताऊंगा. चलिए, और एनी अदर क्वेश्चन? दैट्स ऑल. वंडरफुल. That's all. Thank you. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. चलो सभी के सभी अभी वी विल ब्रेक फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, और जब Okay. 10 मिनट्स के बाद हम जब आएंगे तो हम इसके आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर का इन बिटवीन आप थोड़ा पानी वानी ले, रिलैक्स हो जाए, और तब वी विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन. आज हम यहाँ पे करने वाले, मैं आपको एक दो, कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा. मैं कल कोरोना के लिए एक ब्रीदिंग प्रोटोकॉल बताऊंगा, वो एडवांस ब्रीदिंग टेक्निक्स. आज मैं आपको एक मेडिटेशन कराऊंगा बाद में, कि अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बेहतर करना है. यानी कि जब हम, कई बार कैसा होता है कि हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के सामने हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम बोल नहीं पाते. तो कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है, डिवाइन यू. डिवाइन यू मैं आपको सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस. सो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद पानी वानी पी लें, फिर दोबारा शुरू करते हैं स्क्लेर थेरेपी को, और फिर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से. ठीक है, सो लेट्स टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट्स everyone. And right now it is 4:45. Let's come back to 5 बजे वापस आ जाओ आप. ठीक है, let's break. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome, Priyanshi. No, in the But the first time, please make sure you put on your videos. Videos on पहले अपने सारे put on your videos for beginning. Everyone, welcome. Good. चलिए.